Assalamu alaikum everyone. My name is Musaddiq, a team member of Concord Law and your host for today's session. Today's session is on public international law and will be delivered by Advocate Shahrukh Bhutto. Before inviting him, let me briefly introduce him to you all. Advocate Shahrukh Bhutto is a distinguished advocate of High Court with expertise in civil, criminal, banking, and corporate law. He has previously served as a visiting faculty member at Sindh Mehran Institute of Law, Jamshoro, and Everest Law College, Hyderabad. Currently, he is pursuing his LLM in Italy and also serves as a mentor at Concord Law. Without further delays, let's begin our session. Sir, you can start your session. Thank you so much, Mr. Musaddiq, and very honored to have you all. And it's a really pleasure for me that I have been online, and after a long time, again I have joined with you guys. And firstly, I'm really sorry for that I have come late, and you guys have been waiting since 15 minutes, and I'm really sorry for that. Okay, so we'll go with the lecture for the international law, but previously I would like to brief also about my introduction that I have been pursuing my LLM degree from the University of Sapienza, Italy, and almost I am now on the stage of the thesis. And also, I have worked as a lecturer in St. Meran Institute of Law, and also I have practiced in a high court, but my practice specifically related to the service cases and constitutional law cases, and most probably I also deal with the specific legal and banking legal advising and banking litigations. So that was my introduction in Pakistan. But now I'm pursuing my LLM degree in Pakistan. But also one of the Mr. Musaddiq, I guess one of the students are not hearing my voice properly. Can you please check again? Is everyone audible to hear me? Assalamu alaikum, sir. Please speak louder. Okay, okay. Let me check here. Sir, you are audible. Now, can you hear me? Sir, you are audible, but आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. बहुत. Okay, let me check. Let me check. I guess is that something wrong with network? I guess सबको यही Sir, I शिकायत है might think this is because of your headphones. because of my headphone. Yes, sir. Let me just try again. Please could you hold on? अभी Yes, आवाज sir. clear है? Yes, sir. अब सही है. Okay. Now is it okay? Yes, sir. Okay. मुसद्दिक आवाज नहीं आ रही है सर आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है if you would like to change your headphones then it will work I think Okay. Let me try with. right क्या अभी आवाज सही है? perfect Yes, sir. सही है. अभी सही है आवाज? जी सर, अब सही है. ओके ओके थैंक गॉड. Okay, so let's start. Okay जी, so my Pakistan format, my Pakistan introduction मैंने आप सबको बता दिया है. Now let's move forward because it's already has been delayed before the lecture. So I am also sharing the slides firstly. Then उसके बाद we will go with that specifically. क्या सबको slides दिख रही हैं?
सर स्लाइड्स नहीं शो हो रही। जी अभी दिख रही जी हैं? जी Yes, जी sir. दिख रहा है। It's visible. Okay, now it's visible. Okay, that's great. Okay, Ji. Now let's start with the sliding. Okay, now let's conclude my introduction that I am in pursuing and doing LLM in specifically European legal studies and intellectual property. मैं इस सब्जेक्ट में बेसिकली LLM कर रहा हूँ from the University of Sapienza. Almost I have completed my all the exams. Now I am preparing my thesis. I'm at the stage of my थीसिस और मैं थीसिस जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इन यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो ऑन द सेकेंड हैंड द थिंग व्हिच आई एम डूइंग that right now I'm working in the Middle East. मैं इस वक्त अभी ओमान में हूँ and I have also started my corporate law firm which is specifically deals with the corporate law which is applied on all the GCC countries and मैं अपनी corporate firm जो है वो I have started 4 to 5 months ago and it's specifically working and मैं उस law firm से related I have been practicing the legal services and corporate formation companies. I have been practicing this across all the GCC. I'm covering with the Qatar, Dubai, and also Saudi Arabia. What specific services I am providing through my corporate law firm is that I have formed companies in Middle East and also I provide legal services to the investors who wish to open their companies in GCC countries. Okay, so, and also I'm covering GCC countries, but also I'm attracting the investors who are coming from the Europe, coming from the Russia, and coming from the Iran who wish to open their business setups. So I'm legally advising them and I'm working for them to establish their companies in all across the GCC country. Okay. Still my firm it's going very well and it's been 5th month, so it's my startup and I am working at here because I'm working for thesis parallelly as well. So because of this my schedule and my working is very tough in these days. So that's the all brief introduction from my side. So let's go for the lecture. Let's go for the public international law. What I will discuss today regarding the public international law, we will cover the history of public international law and also about the conflicts, about the wars. And in the end, I will take the questions from you all. And also, I would welcome if anyone wants to ask me about it, how they can pursue their career abroad, how they can come and start their studies in Europe, or how they want to do the job, because this is also the thing which I can understand about the many of the students. Most of them are graduated and most of them are maybe in the final years and बहुत सारे जो हैं वो students हैं who are facing the difficulties in Pakistan according to their career and it's really a big mess in Pakistan क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वजह से it's a very critical thing for the students that how would young generation is going, which path they should have to go and what path they should have to follow. So without delay, let's start with firstly the lecture. Okay, then we will go further for that. Okay, for the lecture I have a different pattern of international law. मैं international law को different तरीके से portray करता हूँ and मैं different तरीके से उसको explain करता हूँ because my way of teaching is not that कि मैं आपको simple definition बताऊं और simple बताऊं कि ये law है ये इस तरीके से apply होगा. I will go with the conflicts क्योंकि जब भी कोई लॉ होता है उस लॉ को बनाने के पीछे देयर शुड बी द कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड बी द साइकोलॉजी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ना कोई जो है वो इंसिडेंट होता है जिस वजह से हमें लॉ बनाना पड़ता है. ओके, सो दैट्स बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ लॉ, टू स्टॉप द क्राइम, to stop that incident, to stop that conflict, and specifically to stop that criminal activities, to maintain the peace for the society, to provide the justice for the society. That's the basic psychology of law. ठीक है. अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते हो तो क्रिमिनल लॉ में आपको वहां पे क्राइम्स को किस तरीके से रोका जा सकता है आप उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं. अगर आपको कोई इंटरनेशनल
कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया जाता है तो उस पे किस तरीके से फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उसको रोकने की बात की जाती है। एंड इफ यू आर स्टडिंग स्पेसिफिकली सिविल लॉ तो किस तरीके से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स को रोका जाता है, इसलिए उसके लिए लॉ होता है। तो सेम हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे भी अप्लाई करते हैं। लाइकवाइज के आज कल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को आपका पता होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आपने देखे हैं बिटवीन द यूएसए, ईरान, इसराइल, also the whole Middle East burning with the war, and also one of the most of the important thing which is how the economic dynamics is going on around the world, why these wars are going, okay, what is the behind the insecurity, किस तरीके से जो है वो मतलब चीजें जो है वो हम देख सकते हैं, किस तरह से हम चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जाके हम इंटरनेशनल लॉ को किस तरह से अप्लाई करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्टली with the history and origin of public international law. Let's come to the wars and conflicts. ठीक है, firstly let's go with the history of wars. सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड में जिस तरह से हम काम करते थे, if we go behind the centuries ago, अगर आप बहुत सेंचुरीज पीछे चले जाओ तो उस टाइम पे हमारे पास दुनिया कुछ डिफरेंट तरीके से डिफाइन थी। वर्ल्ड इज डिफाइंड विद डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उस टाइम पे देयर इज अ नथिंग कॉन्सेप्ट कि देयर शुड बी द कंट्री। कंट्री का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, किसी मुल्क का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है, एंड उसके अलावा हमें पता लगता था कि ये एरिया जो है वो क्रिश्चियंस का है, ये एरिया जो है मुस्लिम्स का है, ये एरिया जूस का है। ठीक है, और हर रिलीजन अपने आप को वर्ल्ड में डोमिनेट करने के लिए अपनी एक स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, हर रिलीजन अपने आप को डोमिनेट करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा था। आई एम स्पीकिंग अबाउट बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट से पहले अगर हम चले जाएं तो हम उस टाइम की बात करते हैं तो वर्ल्ड पूरा का पूरा बटा हुआ था रिलीजन्स में। द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू द रिलीजन्स, मल्टीपल रिलीजन्स थे। ठीक है, बुद्धिस्ट भी थे, हिंदूज भी थे, कहीं महाभारत चल रहा था, कहीं पे जो है वो रोमन कैथोलिक की वॉर्स चल रही थी, कहीं पे हमारे पास रोमन एम्पायर्स का जो है वो मतलब उरूज स्टार्ट हो रहा था। तो देयर हैज बीन कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन एंड स्ट्रगलिंग गोइंग ऑन बिटवीन द पावर्स। ठीक है, पावर्स के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। नाउ कंटिन्यू विद दैट, जब पावर्स के बीच में, जब रिलीजन्स के बीच में ये एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई तो उससे रिलेटेड वॉर्स भी बहुत हुई हमारे पास। ठीक है, बहुत से रिलीजियस वॉर्स हैं जो हमें दिखाई देती हैं। उन वॉर्स को रोकने के लिए या उन वॉर्स के होने की वजह जो है वो दिस बेस्ड ऑन टू कंपोनेंट्स। वन इज इनसिक्योरिटी, जो कि आज भी हमें दिखाई देती है। इनसिक्योरिटी किस चीज की? दैट इनसिक्योरिटी स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द पावर। कहीं उसके पास हमसे ज्यादा पावर ना आ जाए, पावर ऑफ वेपन्स, पावर ऑफ आर्मी, पावर ऑफ टेरिटरी। ठीक है, उसके अलावा पावर ऑफ स्प्रेडिंग द रिलीजन, पावर ऑफ एक्सपेंडिंग देयर रिलीजन। ठीक है, इस वजह से हमारे पास बहुत सारी हिस्टोरिकल वॉर्स लगती हैं। लेकिन जिस तरह से हम आगे दौर में चलते जाते हैं, जिस तरह से हम आगे आते जाते हैं, तो हमें और भी चीजें समझ आने लगती हैं। पहले दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिलीजन से रिलेटेड होते थे, फिर उन रिलीजन से रिलेटेड हमारे पास कई ऐसी वॉर्स हैं जिसमें मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि एंग्लो अमेरिकन वॉर। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर मेंशन करूं तो दैट स्पेसिफिकली वॉर बिटवीन इजिप्शियंस एंड वॉर बिटवीन क्रिश्चियंस। ठीक है, क्योंकि इजिप्शियंस उस टाइम पे हमारे जो प्रॉफिट्स थे उनका आना था, और उन प्रॉफिट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी वॉर जो है वो लगी थी उनकी वजह से। ठीक है, उनकी वजह से नहीं बल्कि इन दैट वे कि हम रिलीजन से रिलेटेड जो है वो एक तरीके की वॉर के एरा में चल रहे थे, जिसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे मुस्लिम्स, दे वर फाइट टुगेदर, और उन्होंने आपस में मिलकर काफी लड़ाइयां लड़ी, और हमारे पास एक रिलीजियस स्ट्रगल जो है वो हमारे पास एक स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं। द ब्रीफ बिहाइंड दीज इंसिडेंट्स, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, द रीजन इज दैट कि आपको बेसिकली एक साइकोलॉजी पता चले कि हाउ वाज इंटरनेशनल लॉ कम इनटू द डेवलपमेंट। कैसे इंटरनेशनल लॉ आपका डेवलपमेंट में आता है, कैसे जो है वो उसका ओरिजिन स्टार्ट होता है। ठीक है, उस टाइम पे कभी भी कोई पीस प्रोसेस का वहां पे बात नहीं की जाती थी। यस, जब हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने ही हैज गिव अस द सॉल्यूशन, जिन्होंने, आपको अगर किसी को भी पता हो
देयर शुड बी द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हमारे पास होती है, एंड उसके अलावा हमारे पास और भी सारी ट्रीटीज जो हैं वो होती हैं। देखिए, कभी भी कोई वॉर होती है तो उसको रोकने के लिए देयर शुड बी द स्ट्रगल, उसको रोकने के लिए एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको स्पेसिफिकली स्टॉप करने के लिए हमें उस स्ट्रगल में जाना पड़ता है। देन रिलीजन्स का जब दौर हमारे पास चला जाता है तो तब हमारे पास एक और नया एरा आता है which is called empirism, यानी कि एम्पायर्स। पहले हमारे पास लड़ाई किस में होती थी सर? पहले हमारे पास लड़ाई होती थी रिलीजन्स के बेसिस पे, अब हमारे पास लड़ाई स्टार्ट होने लगी एम्पायर्स के बीच में। ठीक है, एम्पायर्स कौन कौन से? जैसे कि बहुत ही फेमस एम्पायर है हमारे पास मंगोल एम्पायर, रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, उसके अलावा हमारे पास राजपूत एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और इन एम्पायर्स के बीच में हमारे पास वॉर्स लड़ी गई। ठीक है, स्पेसिफिकली उन वॉर्स का रीजन वही था, द मेन एंड मेजर रीजन यही था कि ताकि हम किस तरीके से अपने वर्ल्ड को, हम किस तरीके से दुनिया को अपने कंट्रोल में ला सकें। ठीक है, आप यहाँ पे मैप्स में देखेंगे तो हमारे पास उस टाइम का मैप बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिवाइडेड था। इट्स यू कैन सी दैट कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो रिलीजन डिवाइडेड थे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस्लामिक रिलीजन, उसके अलावा द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द ऑल रिलीजन्स। सही है, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम और आगे आते हैं तो हमें पता लगता है कि फिर हमारे पास जब वॉर्स स्टार्ट होती हैं तो वॉर्स स्टार्ट बिटवीन द एम्पायर्स। हमारे पास एम्पायर्स के बीच में वॉर्स स्टार्ट होती हैं, जिसमें मुगल एम्पायर हो गया, ऑल एम्पायर्स वर फाइटिंग टुगेदर। ऑटोमन एम्पायर भी था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे, ऐसे यूरोपियन कौमें थी जिन्होंने मिलकर जो है वो अपना एक एम्पायर क्रिएट किया था, और उस एम्पायर से रिलेटेड जो है वो हमारे पास बहुत हद तक जो है वो हमने ये चीजें फेस की। उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वॉर मैं आपके सामने रखूं, हमें आज तक सिर्फ पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, वर्ल्ड वॉर जो है वो 1 हुई है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ ऐसी वॉर्स हुई हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिकली ऑन रिलीजन्स, स्पेसिफिकली ऑन एम्पायर्स। 100 ईयर्स वॉर हमारे पास एक आती है जी, मेरे पास उनकी स्पेसिफिक स्लाइड्स नहीं है, लेकिन आप इफ यू आर लिसनिंग प्रॉपर्ली तो आप उनको नोट कर सकते हैं, यू कैन मेक द नोट्स फॉर दैट, एंड फॉर डिटेल स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। ठीक है, हमारे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, 100 ईयर्स वॉर हमारे पास हुई। 100 ईयर्स वॉर्स का रीजन क्या था, 100 ईयर्स वॉर्स का क्या पर्पस था? दैट इज द स्ट्रगल बिटवीन द यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन नेशंस अगेंस्ट द रिलीजन। यूरोप अगर आप देखो इन दी 70 इन दी सॉरी इन दी 12th सेंचुरी बिटवीन टू 15th सेंचुरी, तो बिटवीन टू 12 एंड 15th सेंचुरी आपको यूरोप कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी वहां पे नेशंस थी, दे वर स्पेसिफिकली स्लेव टू द चर्च। वहां पे चर्च की डोमिनेंसी होती थी, चर्च वाज द डोमिनेंट अथॉरिटी एट द यूरोप, जिसके बेसिस पे कानून बनाए जाते थे, जिसके बेसिस पे प्रॉपर डिप्लोमेसी की जाती थी, उन्हीं के ही बेसिस पे कोई भी अगर नेशन अपनी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती है तो विदाउट परमिशन ऑफ चर्च कुछ नहीं कर सकते। तो उसके अगेंस्ट में वॉर लड़ी गई, और उन वॉर्स में कौन कौन से हमारे पास कंट्रीज थे, कौन कौन सी हमारे पास नेशंस थे? जर्मन्स वर फाइटिंग इन द वॉर, फ्रेंच पीपल वर फाइटिंग इन द वॉर, लेकिन स्पेसिफिकली जो आज हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दिखाई देते हैं, लाइकवाइज स्वीडन एंड नॉर्वे एंड आल्सो फिनलैंड, फिनिश, ये सब कौमें उस वॉर में शामिल थी। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द चर्च डोमिनेंसी, और उसको हम कहते हैं द फेमस 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर्स वॉर हम उसको इसलिए कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन वॉर्स के बाद हमारे पास क्या आता है सर? हमारे पास इन वॉर्स से के खत्म होने के बाद हमारे पास एक ट्रीटी होती है which is we called as ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, आई होप आप सबको इसके बारे में पता होगा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की अगर हम बात करें तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में एक नई चीज हुई। इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में पहले हमारे पास सर वर्ल्ड डिवाइडेड था रिलीजन्स में, उसके बाद उनके बीच में लड़ाई हुई, फिर हमारे पास वर्ल्ड डिवाइड हो गया एम्पायर्स में, उसके बाद फिर एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हुई, देन उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू द स्टेट्स। ओके, हमारे पास एक नई चीज यहाँ पे सामने आती है which is called नेशन स्टेट सिस्टम।
ठीक है, हमारे पास नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, और उस नेशन स्टेट सिस्टम से हमें क्या चीज पता चलती है? उस नेशन स्टेट सिस्टम का ये मतलब था कि अब जितनी भी नेशंस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, अब वो मिलकर अपना इंडिपेंडेंट रिलीजन बनाएंगी, इंडिपेंडेंट अपना स्टेट बनाएंगी, जिनमें उनका अपना रिलीजन प्रैक्टिस होगी, जिनमें उनकी एक स्पेसिफिक रिलीजन जो है वो रिलीजन एक्सरसाइज होगी, और वो रिलीजन एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं, चाहे वो जैसे चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वॉर स्टार्ट होनी है, अब हमारे पास जो वॉर स्टार्ट होती है वो किस चीज की है? एनीवन? अब वॉर किस चीज में होगी? बिटवीन दी स्टेट्स। ठीक है, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट से फिर हम स्टार्ट होते हैं, अब हम आते हैं नेशन स्टेट सिस्टम पे। नेशन स्टेट सिस्टम में हमारे पास एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया, व्हिच इज द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हम कहते हैं। उससे पहले हमारे पास कई ऐसे डेवलपमेंट्स थी जिनको हम पिक करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली नेशंस के बीच में, तो अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की, तो हमारे मुस्लिम्स जो है वो, मतलब मुस्लिम्स में हमें सबसे पहली चीज जो है वो ये मिली कि वी शुड हैव टू एंगेज विथ इफेक्टिव डिप्लोमेसी बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज के बीच में वी शुड हैव टू डू एंड गो विद द स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी। हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। सही है, दैट वन दैट्स द फर्स्ट थिंग जो हमें इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट से पता चलता है, जिस व्हिच इज कम फ्रॉम द मुस्लिम्स। उसके बाद अगर हम बात करें बिटवीन द रोमन एम्पायर्स, जो हमें रोमन्स ने सिखाया, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इस तरीके से डेवलप किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिटवीन द वॉर, किस तरीके से हम इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए हम किस तरीके से अलायंस बना सकते हैं। यानी कि हमें रोमन्स की तरफ से ये समझ आया इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में कि दे शुड हैव क्रिएटेड द अलायंस फॉर द प्रोटेक्टिव अलायंस। अगर मैं उनको डायरेक्टली आज के टाइम में मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे पास G7 कंट्रीज हैं। ठीक है, हमारे पास G20 कंट्रीज हैं। दीज आर अलायंस व्हिच वी आर कॉलिंग दैट इकोनॉमिक अलायंस। वी हैव अ ब्रिक्स, जिसमें 5 कंट्रीज हैं जो अपने आप को इकोनॉमिकली मिलकर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन, अभी ईरान और अमेरिका की जब वॉर हुई, ईरान, इसराइल एंड अमेरिका की जब वॉर हो रही थी, तो हमारे पास एक और इत्तेहाद जो है जिसको हम अलायंस कहते हैं, वो हमारे पास उनकी मीटिंग कॉल हुई, व्हिच इज कॉल्ड OIC। ठीक है, इस्लामिक कोऑपरेशन, एक इस्लामिक कोऑपरेशन का अलायंस हमारे पास कॉल होता है, जिसमें सारे मुस्लिम्स कंट्रीज मिलकर जो है वो आपस में एक सिचुएशन से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अलायंस का कॉन्सेप्ट हमें रोमन एम्पायर से मिलता है। इसी तरीके से अगर हम आते हैं अभी आगे, तो नेशन स्टेट सिस्टम का जब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो हर एक छोटी से छोटी स्टेट ने मिलकर डिमांड करना शुरू कर दी कि वी वांट टू बिकम अ स्टेट। अब उसके लिए पहला क्या लॉ इंट्रोड्यूस हुआ? अगर किसी भी कंट्री ने, अगर किसी भी नेशन ने एक स्टेट बनना है, तो उसको 4 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, 1, दे शुड हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, उनके पास उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। सेकेंडली, उनके पास एक डिफाइंड पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्डली, उनके पास अपनी एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए। एंड नंबर 4, दे शुड हैव टू प्रोटेक्ट देयर सॉवरेनिटी, उनमें डिफेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड वेल फॉर्मेट गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो अपने इन चारों बेसिक पिलर्स के साथ एक जाके वो स्टेट बनती है। लेकिन उस पे हम देखते हैं जब नेशन स्टेट सिस्टम हमारे पास आया, तो काफी ऐसी स्टेट्स थी जिनके पास ये 4 चीजें पूरी नहीं थी। ठीक है, जिनके पास ये 4 चीजें पूरी नहीं थी, तो हमारे पास उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट थी, आई एम स्पीकिंग अबाउट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में, जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स थी, वन ऑफ द स्टेट इज ब्रिटिश एम्पायर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो जो कमजोर कंट्रीज हैं, लाइक उस टाइम के कमजोर कंट्रीज की मैं बात करता हूं, जो आज हमारे पास इसराइल जहां पे रहता है, उस टाइम पे दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से जब रशियंस ने भी अपने आसपास की स्टेट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। कुछ स्टेट्स के पास टेरिटरी थी, तो पॉपुलेशन थी, लेकिन उनके पास प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने उनसे हेल्प ली कि भाई हमें आप आर्मी
आर्मी दें ताकि हम जो है वो अपने आप को एक बेहतरीन स्टेट बना सकें, ठीक है। और सेम तरीके से ये चीज अप्लाई होती है उन कंट्रीज पे जो कि एक कॉलोनी रह चुके हैं, उन ब्रिटिशर्स की, उन फ्रेंच की। अब आप अगर चले जाएं मिडिल ईस्ट में तो मैं बात करूंगा अल्जेरिया की, अल्जेरिया, मोरक्को, एंड उसके अलावा साउथ अफ्रीका, जो कि जिसको हम आज साउथ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दो और स्टेट्स थी, टर्की एंड ऑल्सो थर्ड वन, फिफ्थ वन इज दैट यूक्रेन। अब ये ऐसी स्टेट्स थी, ये एक ऐसी कौमें थी जिनके पास अपनी डिफाइंड टेरिटरी तो थी, जिनके पास अपनी डिफाइंड पॉपुलेशन तो थी, लेकिन दे वुड नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्टेबल गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे मुल्कों से सपोर्ट ली। अब उन मुल्कों ने उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन एक और चीज बुरी हुई यहां पे, विच इज नेशन स्टेट सिस्टम। जब हमारे पास आया, तो जब भी हमारे पास कोई सिस्टम आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हमारे पास फ्लॉ जरूर आता है, उसके उसके लिए कोई ना कोई चैलेंज जरूर आता है। नाउ द फोर्थ एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या आती है सर, दैट इज कॉलोनिज्म, कॉलोनालिज्म, ठीक है। कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो गई, फ्रेंच कॉलोनी एक्सपेंड होती गई, रशियन कॉलोनी एक्सपेंड होती गई, उसके साथ साथ जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो एक्सपेंड होती गई। हमारे पास भी ब्रिटिश, हम भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा थे। अल्जेरियंस, मोरक्कन्स, इनके यहाँ आज भी बहुत एरियाज में फ्रेंच बोली जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट कि वहां पे फ्रेंच जो है वो उन्होंने हुकूमत की थी, दे वर द कॉलोनी ऑफ द फ्रेंच। इसी तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल लॉ जब नेशन स्टेट सिस्टम लेकर आया, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास कई ऐसी ट्रीटीज आई, ठीक है। और उन ट्रीटीज में सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट हमें ट्रीटी मिलती है, ट्रीटी ऑफ हैग 1899। मैं वर्बली आपको बता रहा हूं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ हैग 1899। अब उस ट्रीटी ऑफ हैग में कॉलोनाइलिज्म के अगेंस्ट में काफी हमारे पास लॉज आए, काफी उनके अगेंस्ट में ये लॉज बनाए गए, ताकि भाई अब कॉलोनीज कोई भी नहीं बनाएगा, हर स्टेट को अपना अपना एक हक है, वो अपनी एक स्टेट बना सकता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर हम उन कॉलोनीज के बेसिस पे देखें तो बहुत हद तक हमारे पास मिलिट्री एट्रोसिटीज होती हैं, बहुत हद तक हमारे पास जो है वो पीस डिस्टर्ब होता है, लेकिन उनको खत्म करने के लिए भी हमारे पास पीस ट्रीटीज कायम होती हैं। लेकिन अगेन वंस वी एंटरिंग, अभी हम जो है वो मतलब 16 सेंचुरी में थे, 17 सेंचुरी में थे, लेकिन उसके बाद अब हम एंटर होते हैं 19 सेंचुरी में, ठीक है। अब यहां तक अगर आपका किसी का भी क्वेश्चन है, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ताकि फिर हम, आई विल टेक 3 क्वेश्चंस, उसके बाद हम फर्दर चलते हैं जी। इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क, ताकि फिर हम आगे चलें। No, sir, no question. ओके ओके, आई गेस किसी का माइक खुला हुआ है। Hello, sir. यस यस, अब्दुल Sir, I रऊफ। have a question. Yes, sir. यस अब्दुल रऊफ। सर, जब हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात करते हैं, हम ये यस कहते हैं कि इससे पहले जो रिलीजियन बेसिस था, उस बेसिस पर पावर एक्सरसाइज होती थी। सो जब जी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले दो मेजर रिलीजियस पावर होती थी, एक कैथोलिक होती थी, एक प्रोटेस्टेंट होती थी। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले रिलीजियस पावर एक्सरसाइज होती थी, उस टाइम पे दो मेन पावर होती थी रिलीजियस, एक कैथोलिक होते थे और एक प्रोटेस्टेंट, बोथ आर क्रिश्चियंस। तो सर, मेरा जो सवाल है वो है कि इसके साथ और भी डिफरेंट ग्रुप्स थे, या ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जो मेन बेस है ये सिर्फ इन दो बेसिस के ग्रुप पे बना हुआ है? नहीं, देखें, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया नॉट ओनली स्पेसिफिक रिलेटेड टू दीज टू ग्रुप्स, बट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो उस टाइम पे जो कि वॉर्स जो थी वो ज्यादातर यूरोप के रीजन में होती थी, ठीक है। एंड यूरोप के रीजन में जब ये वॉर्स होती थी तो उनकी वजह से बहुत हद तक हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए। वन ऑफ द मेजर थिंग इज दैट कि हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसको खत्म करने के लिए जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी की गई थी। लेकिन उसमें बहुत सारी नेशंस ने जो कि पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से द वॉर हैज बीन एक्सपेंडेड एज सो हार्ड, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, बोहेमियंस, ठीक है। बोहेमियंस और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन ये सब बेसिकली रिलीजन सेक्टेरियंस हैं, ठीक है, ऑफ द क्रिश्चियंस।
क्यों? क्योंकि अक्सर तौर पर क्या था, जो कि चर्च की डोमिनेंसी होती थी, या तो चर्च डोमिनेंसी वाज डिवाइडेड बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स। जो हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, जिसको आज हम स्वीडन कहते हैं, जिसको आज हम नॉर्वे कहते हैं, दीज वर डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस, क्योंकि वहां पे रिलीजन जो डायनेस्टी या रिलीजन जो चलता था, वो ज्यादातर जो था वो प्रोटेस्टेंट्स का चलता था। प्रोटेस्टेंट्स वर सो मेनी पीपल एंड प्रोटेस्टेंट्स वर सो मच डोमिनेंट ऑन दीज ग्रुप्स। ठीक है, इसी वॉर के बाद हमारे पास ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि आज हमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड उसके अलावा हमें जो है वो नंबर 4th कंट्री इज डेनमार्क। ये हमें डेनिश, ये सारे के सारे कंट्रीज हमें मिलकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिलते हैं। लेकिन बिटवीन दीज वॉर्स इनका डायरेक्ट इसमें जो है वो पार्टिसिपेशन था, और इन पार्टिसिपेशंस की ही वजह से उन वॉर्स को बहुत ज्यादा एस्केलेशन मिली। तो you can say that the fight between and war between these religion groups, जिसमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स और उसके अलावा बोहेमियंस आते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी रिलीजन्स थे लाइकवाइज के ग्रीस, ये इनका एक अलग स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमें मिलती है, व्हिच इज इन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, जो कि हमारे पास यूरोप में ज्यादा मिलती है। जर्मन उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लेते हैं। व्हाई? नाउ इट्स स्पेसिफिकली द स्टेटस। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्टेटस ओरिएंटेड, हमारे पास काफी आज के टाइम में स्टेट्स हैं। और उसका और एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ताइवान का। ताइवान इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट ही क्लेम्स दैट ही इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बट चाइना कहता है कि ताइवान वुड बी अवर टेरिटरी बिकॉज इट वाज अवर प्रोविंस। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से इट्स हैज ऑब्जर्वेशन स्टेटस। ठीक है, इनको आज हम यूनाइटेड नेशन में देखें तो इनको हम कहते हैं ऑब्जर्विंग स्टेट। इनको हम ऑब्जर्विंग स्टेट का स्टेटस देखते हुए कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं सर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और उसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। लाइकवाइज के वर्ल्ड वॉर 1 हमारे पास होती है, वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास होती है। ठीक है, एंड उसके अलावा हमारे पास बहुत हद तक ऐसी चीजें थी जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट्स दिखाई देती हैं। उसके साथ साथ बहुत हद तक चीजें हमें नजर आती हैं। देखें, अब मैं बात करूं तो वर्ल्ड वॉर 1 हमारे पास होती है, जिसको रोकने के लिए, अब वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली उसके क्या रीजंस थे, उसकी क्या बेसिकली जो है वो रीजन थी। देखें, पहले it's a start of basically a 19th century, it's a start of basically a 20th century। पहले जो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, जो भी स्टेट्स लाइकवाइज जो सेंचुरीज तक जिन्होंने हुकूमत की है, उनके पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनकी वजह से उन्होंने हुकूमत की है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश एम्पायर की, अगर मैं बात करूं रशियन एम्पायर की, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली ऑटोमन एम्पायर्स की, तो ये बेसिकली वो जो है वो एम्पायर्स थी, ये बेसिकली वो स्टेट्स थी जिन्होंने हुकूमत की अपने वेपन सिस्टम की वजह से, अपनी मिलिट्रीज की वजह से। पहले ये बड़ा मशहूर होता था कि अगर आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, ये कोई लॉ नहीं था, लेकिन इस चीज को पब्लिकेट किया जाता था, इस चीज को पब्लिश किया जाता था कि भाई अगर तुम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो तो जरा हमें अपना पावर दिखाओ। पावर कैसे दिखाओ भाई? वॉर में आ जाओ, मतलब एक स्टेट के साथ वॉर करो तो हमें पता लगेगा कि ओके नाउ यू आर अ स्पेसिफिक स्टेट, आप यू आर अ पावरफुल कंट्री बिकॉज यू आर इन अ वॉर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी पब्लिकेशंस हमें दिखाई देती हैं। वन ऑफ द सेकेंड रीजन जिस वजह से एम्पायर्स जो थी वो एक्सपेंड होती थी और वॉर्स होती थी, व्हिच इज द इनसिक्योरिटी ऑफ टेरिटरी। टेरिटरीज को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल होता था, बहुत स्ट्रगल। लाइकवाइज के ब्रिटेन
ब्रिटेन ने क्या किया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। क्यों बनाई? ताकि वो हमारे जो है वो मतलब एरिया पे, हमारे कॉन्टिनेंट पे, हमारे स्पेसिफिक एरिया पे वो हुकूमत कर सकें। इसी तरीके से आप देखो तो उस टाइम पे यूएसए वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। 16 एंड 17 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे यूएसए वर आल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। वो उसका जो है वो कॉलोनी था। ब्रिटेन वर डोमिनेंट, it was the Great Britain was dominant in every specific continent of the country, ठीक है। हर कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन की कोई ना कोई कॉलोनी थी, कोई ना कोई कंट्री था। इसी तरीके से फ्रांस का भी मामला यही था। लेकिन उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया, उसको किस तरीके से रोका गया? वॉर्स में पार्टिसिपेट करके। तो अगर कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री अपने आप को शो करना चाहता है to that I am a powerful country, that I am a powerful country to participate in a war, तो उसको वॉर में शामिल होना जरूरी था, उसके लिए वॉर में पार्टिसिपेट करना जरूरी था। इस वजह से हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 लगती है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी जो है वो इनसिक्योरिटीज होती हैं। इनसिक्योरिटीज की वजह से भी हमारे पास वॉर लगती है। उसके साथ साथ हमारे पास इनसिक्योरिटी के साथ साथ जो है वो मिलिट्री पावर को एक्सपेंड किया जाता है। कोई ना कोई कंट्री किसके साथ या मिलकर या तो वेपन खरीद रहा है या किसके साथ मिलकर जो है वो सीक्रेट अलायंस साइन कर रहा है। अब वन ऑफ द मेजर रीजन इज सीक्रेट अलायंस। क्या होता है सीक्रेट अलायंस? हम किसको कहते हैं? सीक्रेट अलायंस हम उसको कहते हैं जो आज के टाइम में भी हमारे पास चलता है, व्हिच इज कि आप स्टेट्स के बीच में एक सीक्रेट अलायंस बना लो। यानी कि अगर आप पे फला कंट्री ने अटैक किया तो फला कंट्री के अटैक करने के बाद हम उस पर दोबारा अटैक करेंगे। यानी कि अगर इस फला कंट्री ने आप पर अटैक किया तो इट शुड बी कंसीडर कि उसने हमारी टेरिटरी पे अटैक किया। तो सीक्रेट अलायंस, डिप्लोमेटिक अलायंस जो थे वो कंट्रीज के बीच में बन गए थे, जिस वजह से हमारे पास बहुत हद तक चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई। जिस वजह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जो वॉर में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनको वॉर में जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन इस वॉर को रोकने के लिए हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आते हैं जिसका नाम है सर वुड्रो विल्सन, ठीक है। उन्होंने अपने 19 to 18 पॉइंट्स दिए जिसमें उन्होंने कहा कि वॉर को रोका जाना चाहिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट मैं वॉर्स की डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको वॉर के टाइप जरूर एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। क्या हुआ कि वुड्रो विल्सन साहब ने पॉइंट्स दिए जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हमें इस वॉर को रोकना है तो देयर शुड बी द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट। हमें स्टेट्स की डिटर्मिनेशन ऑफ राइट की बात करनी पड़ेगी। हमें स्टेट्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा कि आप इक्वली होकर जो है वो काम करें मिलकर, और आप इक्वली होकर स्पेसिफिकली अपना जो है वो एक राइट एग्जिस्ट करें। उनको एक स्टेटस तो दो व्हिच इज कॉल्ड इक्वालिटी स्टेटस। सेकंड थिंग उसमें हमारे पास क्या आती है? हमारे पास वुड्रो विल्सन साहब ने ये भी कहा कि जो भी वॉर का अक्यूज है उसके अगेंस्ट जो है वो आप फाइन जारी करें। यानी कि उस स्टेट, जैसे कि सबसे ज्यादा जो है ना अक्यूज किया गया जर्मन्स को। जर्मन्स को जब अक्यूज किया गया तो फिर उन्होंने जो है वो मतलब कहा कि इन जर्मन्स की टेरिटरी जो है वो आप उसको एज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ले लो। जब तक ये एज अ सजा, एज अ पनिशमेंट के तौर पर उनके खिलाफ ये स्टैंड लिया गया कि भाई आप एक स्टेट हैं, हम आपकी फला टेरिटरी, सपोज हम नॉर्थ जर्मनी जो है वो हम आपसे ले लेते हैं। नॉर्थ जर्मनी उन्होंने उनसे ले लिया और कहा कि ये हमारा हिस्सा रहेगा जब तक आप जो है वो पैसे या जब तक आप जो है वो इस वॉर का जो है वो आप अजाला नहीं करेंगे, पेमेंट या जिस इस तरीके से आप फाइन नहीं भरेंगे, तब तक ये हमारी टेरिटरी में रहेगा। द कंट्री वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, जर्मनी कंट्री वॉज अ कॉम्प्रोमाइज एट दैट टाइम। और यही रीजन है कि हमारे पास जो लीग ऑफ नेशन बनी, बेसिकली उन्होंने कहा था कि आप एक स्पेसिफिकली एक इदारा बनाएं जिसमें स्टेट्स की डिटर्मिनेशन की बात हो। लेकिन उसमें सर क्या हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर 1 में जिन जिन ने वर्ल्ड वॉर 1 जीती थी उन सब ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया which is called a League of Nation, और फिर जो कमजोर स्टेट्स थी उन कमजोर स्टेट्स पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए। उन कमजोर स्टेट्स के खिलाफ उन्होंने, जैसे कि आज हमारे पास इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की लीग ऑफ नेशन की, तो तब हमारे पास सैंक्शंस कैसे लगते थे? उस स्टेट की टेरिटरी को सीज किया जाता था, उस स्टेट की मिलिट्री को सीज किया जाता था, उसकी मिलिट्री को कंट्रोल किया जाता था, उस स्टेट के रिलेशंस, उस स्टेट की मिनिस्ट्रीज को कंट्रोल किया जाता था कि भाई ये इन पे अब हमारा जो है वो मतलब कंट्रोल है। जब तक तुम इन फाइन्स को नहीं भरते हो तब तक जाके जो है वो आपका
ये रिकॉर्ड होगा, तब तक जो है वो हम आपको पनिशमेंट के तौर पर डील करेंगे। ये ना तो आप कोई कारोबार कर सकते हो, ना तो आप कोई रिलेशन रख सकते हो, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी टेरिटरी को हमारे हवाले करना है। दैट वाज द टाइप ऑफ सैंक्शन जो उस टाइम पे लगते थे। लीग ऑफ नेशन हमारे पास चले बन गई, हमारे पास अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बोल तो दिया, वुड्रो विल्सन साहब ने, कि भाई लीग ऑफ नेशन बन गई। अब लीग ऑफ नेशन बनने के बाद बहुत सारी स्टेट्स ने उसको सीरियस नहीं लिया। लीग ऑफ नेशन ने पहला लॉ ये निकाला कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट जो है वो मैस एक्सप्लोसिव वेपन्स नहीं बनाएगी, ठीक है, कोई भी मैस एक्सप्लोसिव वेपन नहीं बनाएगी। अब उसका नतीजा क्या हुआ, जापान ने इस चीज को सीरियस लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मैस एक्सप्लोसिव वेपन ना बनाएं, हम वेपन बनाएंगे। आगे जाके जापान ने उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है, लीग ऑफ नेशन से वो निकल गया। जापान वाज द फर्स्ट कंट्री जो लीग ऑफ नेशन को उसने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और वो निकल गया। उसके बाद हमारे पास और भी कंट्रीज थे, लाइकवाइज यूएसए वर नेवर पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। उसने कहा मैं लीग ऑफ नेशन का कभी हिस्सा बनूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यूएसए बनता तो उसको पैसे देने पड़ते। वर्ल्ड वॉर वन का भी आप देखें तो यूएसए वर पार्टिसिपेटेड इन वॉर इन द लास्ट ईयर, बिल्कुल एंड में पार्टिसिपेट किया है उसने। लेकिन टिल देन यूएस ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को कर्जे देना स्टार्ट किए, उनको वेपन्स प्रोवाइड किए, कहा कि भाई ठीक है ये वेपन्स लो, बाद में हमें तुम पैसे पे कर देना। यूएसए वर प्लेइंग ऑन देयर पार्ट। इस तरीके से वॉर में हर एक कंट्री ने अपना अपना एक स्मार्ट पार्ट जो है वो प्ले किया, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, लीग ऑफ नेशन आगे जाके बहुत सारी स्टेट्स ने उसको फॉलो अप नहीं किया और निकल गए वहां से, इसलिए हमारे पास लीग ऑफ नेशन फॉल भी हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्वालिटी जो है वो प्रॉपर नहीं थी। उसके साथ साथ कोई भी कंट्रीज अगर लॉ बनाते थे आपस में मिलकर तो वो अप्लाई उन गरीब मुल्कों पर ही होता था। या तो वो अप्लाई होगा जर्मनी पे, या तो वो अप्लाई होगा अफ्रीकन कंट्रीज पे, या तो वो अप्लाई होगा यूरोप के गरीब मुल्कों पे। गरीब मुल्क कौन से? उस टाइम के जो गरीब मुल्क थे व्हिच वाज स्वीडन, ठीक है। आज हमारे पास जो क्रोएशिया दिखाई देता है व्हिच इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे दीज वर द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन, लेकिन उन पे अप्लाई होता था। ये कोई वेपन नहीं बना सकते, लेकिन जिनके पास पावर थी, जिनके पास इंडिपेंडेंट जो है वो मतलब मिलिट्री थी, उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने फिर लीग ऑफ नेशन से अपने आप को निकाल लिया। अब इस तरीके से हमारे पास जब हिटलर का रिवॉल्ट आता है, हिटलर, क्योंकि जब भी हमारे पास इस तरीके की जारियत हुई है तो कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे एक वर्ल्ड लीडर सामने आता है, जिसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा डायरेक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का पैटर्न देखो तो उसमें क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमारे पास जितनी भी वहां की अवाम थी उन्होंने अपने लीडर्स के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने लीडर्स के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया, और जिस वजह से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। लेकिन हमारे पास जो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है वो डेमोक्रेसी हमारे पास स्पेसिफिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस होती है। पहली बार अवाम से कोई नुमाइंदा चुना जाता है, एक लीडर चुना जाता है जो आके अमीरों के पार्लियामेंट में आके बैठता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई, लोगों के वोट से एक बंदा आके पार्लियामेंट में बैठ रहा है बिटवीन द रिच पीपल, ठीक है, ताकि वो उन लोगों के राइट्स की डिफेंड कर सके। इसी तरीके से जब हमारे पास लीग ऑफ नेशन जब फेल होती है, लीग ऑफ नेशन के फेल होने की वजह यह थी कि स्टेट्स ने, जो गरीब मुल्क थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया, ठीक है। और रिवॉल्ट में सबसे पहले जर्मनी था। जर्मनी ने बहुत सारी जो है वो मतलब चीजों को डिनाई किया, क्योंकि जर्मनी की लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उनको आगे जाके लीडरशिप स्ट्रांग मिली, जिसमें था हिटलर जो है वो सामने आए, उन्होंने जर्मन की लीडरशिप को उठाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रगल की बात करता हूं तो हमारे पास और भी स्ट्रगल्स हैं जो हमें मिलती हैं इस सूरत हाल में। जब भी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इंडिविजुअल राइट्स भी सामने आते हैं, व्हिच इज ह्यूमन राइट्स, ठीक है, व्हिच इज अ स्पेसिफिक स्टेट के लिए राइट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो उनके राइट्स की बात की जाती है। इसी तरीके से अगर आप सेम पीरियड में चलें तो उस टाइम पे अमेरिका में भी स्ट्रगल हो रही थी बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपल। व्हाइट एंड ब्लैक पीपल की वॉर के बीच में एंग्लो अमेरिकन एंड व्हाइट अमेरिकन के बीच में वॉर्स होती थी, और उनको रोकने के लिए, उनके खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट वॉर चल रही थी।
इसी तरीके से यूएस ने भी अपने तरीके से जो है वो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट की जो है वो वॉर को खत्म करने के लिए हमारे पास एक लीडर सामने आते हैं, व्हिच इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन साहब ने बहुत ही ऐसी पॉलिसीज बनाई यूएसए में जिसमें ब्लैक और व्हाइट का खत्म हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है, दैट्स द मेजर रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ जर्मनी। इन माय कोर्स जो कि मैंने अभी इटली में आई एम डूइंग एलएलएम, तो मैंने वहां पे पढ़ा था कि इट्स कॉल्ड, जो जर्मनी ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, इट्स कॉल्ड, इट्स अ नेम इज रिवेंज ऑफ हिटलर, रिवेंज ऑफ जर्मनी। वर्ल्ड वॉर टू का जो नाम यूरोप में मशहूर है वो बोला जाता है कि रिवेंज ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी अपने रिवेंज से निकल कर आता है और वो उन स्टेट्स के खिलाफ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास लीग ऑफ नेशन फॉल हो गई। लीग ऑफ नेशन के फॉल हो जाने के बाद हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स वॉर में हो जाती हैं। जर्मनी वाज वेरी वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज था। उसने बहुत सारी कंट्रीज पे इस तरीके से दिनों में उसने कब्जा किया। he has been conquering the countries within weeks, within a months, और उनके खिलाफ जो है वो उसने अपनी जो है वो स्टेट, अपनी वेपनरी उतनी बनाई थी। ठीक है, लेकिन इसके आगे जाते हुए हमें चीज दिखती है कि हमारे पास इस वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बहुत सारे कंट्रीज स्ट्रगल भी कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर टू जो होती है, इटली एंड जर्मन्स वर बोथ टुगेदर, वो साथ में मिलकर काम करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड यूएसए हमारे पास सामने नहीं था इस वॉर में। यूएसए वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, वो हमारे पास एंड में सामने आता है जबकि जापान उन पे अटैक करता है। ठीक है, जापान इज ऑल्सो डूइंग अ इंडिविजुअल वॉर, वो अपनी इंडिविजुअल वॉर लड़ रहा था। इटली, जापान एंड जर्मन्स ये अपनी इंडिविजुअल वॉर लड़ रहे थे और ये उन सब के अगेंस्ट थे। इसी तरीके से यूएस ने जब वॉर में शामिल होना चाहा तो उसका भी एक मेजर रीजन था, क्योंकि हमारे पास जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी तो वर्ल्ड वॉर टू हमारे पास पहले यूरोप से स्टार्ट होती है, और यूरोप में सबसे पहले जो वॉर स्टार्ट होती है, सबसे पहले जर्मन्स ने पोलैंड पे कब्जा करना स्टार्ट किया। ठीक है, जर्मन्स ने पोलैंड पे कब्जा करने के साथ साथ फ्रांस पे भी उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे एरियाज थे जिन्होंने उन्होंने अटैक किया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्री। जैसे कि पोलैंड पे जब जर्मन्स ने अटैक किया तो उन्होंने एक सीक्रेट डिप्लोमेसी के तहत रशियंस के साथ उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, कहा कि आधा पोलैंड आप लोगे, आधा पोलैंड हम लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी जो है वो मतलब टेरिटरीज पे जर्मनी अटैक करता गया। लेकिन अगेन उसको रोकने के लिए बहुत सारे पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसको रोकने के लिए बहुत सारी पीस टॉक्स हुई, जिसमें हमारे पास द हैग यानी कि नेदरलैंड्स में द हैग हमारे पास, उसमें बहुत सारी पीस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर पार्ट इज दैट कि जब हमने वर्ल्ड वॉर वन को रोका था तो वर्ल्ड वॉर वन को रोकने के लिए हमारे पास एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हमारे पास साइन होती है जिसमें लीग ऑफ नेशन की बात की जाती है। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर टू रोकने के लिए बहुत सारी चीजें जो थी हमारे पास कंट्रोल से बाहर हो गई थी। ठीक है, अब जापान वाज अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अब उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई। ठीक है, जापान was that very critical at that time। अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि केमिकल वेपन्स जो हैं वो सबसे पहले किसने बनाए थे और बायोलॉजिकल वेपन सबसे पहले किसने बनाए थे, तो जापान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश की थी। एंड जापान जो है वो मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में कामयाब भी हुआ था और केमिकल वेपन्स बनाने में भी कामयाब हुआ था। लेकिन जापान वाज द वन ऑफ द हेवीएस्ट कंट्री जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो यूएसए वाज नॉट पार्ट ऑफ द वॉर, लेकिन क्या हुआ कि जापान has done a mistake to attack Pearl Harbor। Pearl Harbor जो कि अमेरिका का ही हिस्सा था, उस पे अटैक करने का पर्पस ये था कि अमेरिका बेसिकली जापान को ऑयल सप्लाई कर रहा था ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर अमेरिका जापान को ऑयल सप्लाई कर रहा था और इवन वो दूसरे कंट्रीज को भी ऑयल सप्लाई कर रहा था। अब उन ऑयल को सप्लाई करने की वजह से अमेरिका पे प्रेशर पड़ा, कहा कि भाई आप जो है वो जापान को ऑयल सप्लाई ना करो। तो अमेरिका ने उस टाइम पे जापान का ऑयल जो है वो रोक दिया। इस वजह से जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पे। लेकिन जापान को कंट्रोल करने के लिए देयर वाज अ नो सॉल्यूशन।
उस टाइम पे फिर जो है वो they have introduced, they have started a struggle कि हमें एक ऐसा वेपन बनाना चाहिए जिससे हम जापान को रोक सकें। उस वजह से हमारे पास हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है वो हमारे पास इवेंट होता है, ठीक है। बिकॉज जापान का जो सुप्रीम लीडर था जिसका नाम है शिदोशी, उसने उसको रोकने के लिए, उसने उसको स्टॉप करने के लिए ही डिड नो सरेंडर, उसने कोई भी सरेंडर नहीं किया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो जापान को रोकने के लिए जो है वो हमारे पास अटैक किए जाते हैं। अमेरिका हैज अटैक्ड, जो कि स्पेसिफिकली हिरोशिमा और नागासाकी होता है। लेकिन अगर इस वर्ल्ड वॉर को एंड करके फिर हम देखें तो हमारे पास कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शंस हो चुकी थी, हमारे पास कितने बड़े लॉस हो चुके थे, कितने बड़े नुकसान हो चुके थे। तो उसके बाद हमारे पास एक फर्स्ट टाइम चीज जो है वो सामने आती है जिसको हम कहते हैं, एक तरीके से उसको रोकने के लिए हमारे पास नए लॉस को सामने लाया गया, ठीक है। इस वॉर को रोकने के लिए हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको कहते हैं हम ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 1944 में होती है। उस 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है अबाउट टू स्टॉप द वॉर, जिसमें सारे स्टेट, सारे कंट्रीज के लोग आके बैठे हैं और उन्होंने बात की है कि किस तरीके से हमें वॉर को रोकना चाहिए। नाउ लेट्स इमेजिन द सिनेरियो। उस टाइम पे आप 1944 में हो, बहुत सारे मेजर कंट्रीज हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज के इकोनॉमीज जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कर्ज में डूब गए हैं, ठीक है। उनके पास अपने आप को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यूएन, यूनाइटेड नेशन को बनाने से पहले 3 इदारों को बनाने की कोशिश की गई, जिसके नाम हम आज भी जानते हैं। अगर उस टाइम पे जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जब हमारे पास सारे वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, अगर हमें कंट्रीज की इकोनॉमी को दोबारा से बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले बात की कि हम एक ऐसा इदारा बनाते हैं जो दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमीज को फंड करेगा, दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमीज को जो है वो पैसे देगा, ठीक है, ताकि वो कंट्रीज मिलकर अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकें या अपने आप को जो है वो एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकें। हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे और वो जो इदारा बनेगा उसको सारे के सारे कंट्रीज मिलकर जो है वो 2%, 5% जो है वो पैसे डाल के फाइनेंस करेंगे। तो हमारे पास उस टाइम पे बात करें, फ्रांस, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह थी, ब्रिटिश, उसके अलावा रशियंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास आता है जर्मन्स। तो उन सबकी इकोनॉमीज वर डिस्ट्रॉय, बहुत सारी इनकी इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनकी वेपन्स जो है वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। तो उन इदारों को बनाने के लिए उन्होंने ये उन चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम आज IMF कहते हैं, ठीक है। ये मिलकर उन्होंने इदारा बनाया है। IMF का क्या काम है? IMF क्या करेगा कि लोन प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को कि भाई ये आप लोन लो, आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करो, जब आपके पास पैसे आ जाएं आप हमें वापस करो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा इदारा जो है वो उसकी बात की गई, कहा कि चलो ठीक है, हम इन मुल्कों को इकोनॉमी चलाने के लिए लोन तो दे रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस कैसे करेंगे? इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हैं, किसी कंट्री में एयरपोर्ट बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है, रेलवे लाइंस खत्म हो चुकी हैं, सी पोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड, बिग ब्रिजेस, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो उनको कैसे दोबारा से जो है वो बनाया जाए? तो उसके बेसिस पे इन्होंने दूसरा सजेशन दिया ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सजेशन दिया, चलें ठीक है, अगर हमें इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से स्टार्ट करना है तो हम एक और इदारा बनाते हैं जो कि उन सारे के सारे जो है वो कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा, व्हिच इज नाउ कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या काम था? वर्ल्ड बैंक का यही काम था कि अगर कोई स्टेट अपने कंट्री में प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए बैंक उनको लोन देगी, और जब वो उनके एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी को रेलवे लाइन लगानी है, किसी को अपना सिटी जो है वो दोबारा से बेहतर करना है, किसी को जो है वो अपना एयरपोर्ट बनाना है, किसी को अपना सी पोर्ट बनाना है, ठीक है, और किसी को अपने बिजनेस के लिए शिप्स बनाने हैं। तो वर्ल्ड बैंक एक इदारा बना जिन्होंने उनको लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। नाउ थर्ड जो है वो चीज थी कि चलें ठीक है, हमने इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा भी दे दिया,
हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर करने के लिए इदारा बना दिया, व्हिच इज नाउ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब हम उन स्टेट्स को वॉर से रोकने के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो आपस में ट्रेड करें, आपस में मिलकर कारोबार करें। दे शुड नॉट हैव टू गो अगेन फॉर द वॉर, ताकि वो वॉर में दोबारा से ना जाए। तो फिर जो हमारे पास द थर्ड थिंग जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है स्पेसिफिकली जिसको हम कहते हैं आज जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। उस टाइम पे जब बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं गैट, जिसका आज हमारे पास नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम क्या है कि अगर किसी भी गरीब मुल्क ने किसी अमीर मुल्क के साथ तिजारत करनी है तो चला जाए सीधा सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास वो जाएगा तो वो उनके लिए रिलेशंस बेहतर एस्टेब्लिश करेंगी। इसी तरीके से हमारा जो पूरा यूएन चार्टर है, वो इस तरीके से हमारे पास यूएन चार्टर बना, जिसमें आर्टिकल 2 कहता है कि हमें सारी स्टेट्स की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, सारी स्टेट्स इक्वली ट्रीट की जाएंगी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक जो सोर्सेस दिखाई देती हैं, उन सोर्सेस से रिलेटेड हमें चीजें नजर आती है कि हमारे प्रीवियस रिलेशंस कैसे थे, हमारे पास प्रीवियस जो है वो मतलब कौन सी चीजें थी जिससे रिलेशंस बेहतर हो। अब इसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई जो हमारे पास आज चलती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जिन जिन स्टेट्स ने मिलकर जेनोसाइड की, जिन जिन स्टेट्स ने मिलकर हमारे जो है वो लोगों को मारा, सिविलियन पॉपुलेशन को मारा गया, हमें उनके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस किए गए, जो उसमें हमारे पास आता है सर टोक्यो ट्रायल एंड नूरेमबर्ग ट्रायल्स। जितने भी जर्मन जो है वो मतलब कमांडर्स थे, वन ऑफ द फेमस कमांडर इज इनरिख, जर्मन कमांडर का नाम है इनरिख, जिसने जूस के अगेंस्ट, यानी कि जो जूविश थे उनके अगेंस्ट उसने हॉलोकॉस्ट किया था, उन जूविश को मिलियंस ऑफ जूविश को मारा गया था। तो ही वाज द कमांडर एंड स्टेट लीडर एट दैट टाइम। तो उन्होंने उसको पनिश करने के लिए और सब उन सुप्रीम कमांडर्स को पनिश करने के लिए उन्होंने ये ट्रायल्स का सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, और उन ट्रायल्स में पहली बार इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल्स को सजा हुई। मैं अगर बात करूं नरेमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो ट्रायल्स, अगर मैं एग्जीक्यूशंस की बात करूं, सो द रफली नंबर इज स्पेसिफिकली 91 एग्जीक्यूशंस की गई थी उस टाइम पे, 91 एग्जीक्यूशंस की गई, जिसमें जर्मन्स और जापानीज जिनके सुप्रीम लीडर्स शामिल थे। ठीक है, और उनके अगेंस्ट में बहुत हद तक जो है वो ऑपरेशंस किए गए, स्टिंग ऑपरेशंस किए गए, जो कि इनरिख जो सुप्रीम कमांडर है, जब उसको पकड़ा गया 1964 में उसको पकड़ा गया अर्जेंटीना से। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास जो है वो ट्रायल्स जो है वो होते गए, आर्बिट्रेशंस होती गई, ताकि हम रिलेशंस को बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, लॉ ऑफ नेशंस को बनाया गया, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया गया। ठीक है, रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ स्टेट्स को बनाया गया। उसके अलावा इनके गवर्नमेंट सिस्टम को भी जो है वो बेहतर तरीके से बनाया गया, ताकि गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भी अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, अब यहां तक आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिकॉज हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जनरल सोर्सेस को कवर किया है एंड उसके साथ साथ हमने हिस्ट्री को कवर किया है। अब हम आगे जाएंगे, उस पे हम सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ हम सोर्सेस को भी कनेक्ट करेंगे। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, या अगर समझ आ रहा है तो भी बताएं, समझ नहीं आ रहा तो भी पूछें। यस, if anyone have a question, please feel free to ask. Okay, 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 okay जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की बेसिक सोर्सेस पे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन जो है आप सबको जनरली या तो पता होगी कि इंटरनेशनल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्टेट्स, लेकिन मैं इसको वर्बली जो है वो मैं उस पर आपसे डिस्कस करूंगा कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो लाइकवाइज जहां पे पैरेलली हमारे पास वॉर चल रही थी, वहीं पे पैरेलली हमारे पास
स्कॉलर्स और इंटरनेशनल लॉ के जो ऑथर्स थे वो वहां पे काम कर रहे थे। हमारे पास 3 बड़े प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को बहुत हद तक अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डेवलप किया और काम किया। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जेजी स्टार्क, जिसको फादर ऑफ नेशन जो है वो मतलब फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है, जेजी स्टार्क। एंड सेकंड इज हुगो ग्रोशियस। हुगो ग्रोशियस भी जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कॉलर जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ की बात की। एंड द थर्ड वन इज हमारे पास प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ब्रेयरली, JL ब्रेयरली, ठीक है। ही वाज अ फ्रेंच स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की हम डेफिनेशन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन जो दी थी वो JL ब्रेयरली साहब ने दी थी। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ बिटवीन द रूल्स ऑफ द स्टेट एंड इट फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट्स, ठीक है। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उन स्टेट्स के लिए जो कि सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन डिफाइन की, व्हिच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी ओनली एंड ओनली बिटवीन दी सिविलाइज्ड स्टेट्स, यानी कि इंटरनेशनल लॉ सिविलाइज्ड स्टेट्स के ही बारे में बात करेगा। जो दूसरी गरीब कंट्रीज हैं, जो दूसरी स्टेट्स हैं, उनके बारे में बात नहीं करेगा। तो इनके ही ओपोनेंट में डेफिनेशन दी हुगो ग्रोशियस साहब ने। हुगो ग्रोशियस वन ऑफ द फेमस इंटरनेशनल लॉ ऑथर, जिसने फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी में इसने एक बुक लिखी थी which is namely as the maritime high seas, the law of high seas, the maritime seas, ठीक है। इन्होंने द लॉ ऑफ हाई सी पे काम किया, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया। अब इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या दी कि इंटरनेशनल लॉ इज अ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स which are binding the actions of all states। यानी कि इन्होंने जब इस बात को बताया कि भाई इंटरनेशनल लॉ जो है वो मतलब रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बात करता है, एक्शन ऑफ द स्टेट्स पे बात करता है, एक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के एक्शंस की बात करता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस ही डेफिनेशन में एक और हमारे पास डेवलपमेंट सामने आती है which has given us to by JG स्टार्क। JG स्टार्क ने इंटरनेशनल लॉ को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में डिफाइन किया है, बहुत ही अच्छे जो है वो मतलब प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए उन्होंने डिफाइन किया है। JG स्टार्क साहब ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज अ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन ऑफ स्टेट्स which controls and define the functions of states, okay, and also it defined the functions of international institutes and international organizations, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ना सिर्फ स्टेट्स पे अप्लाई होगा बल्कि वो नॉन स्टेट एंटिटीज पे भी अप्लाई होगा, नॉन स्टेट एक्टर्स पे भी अप्लाई होगा, एंड उसके साथ साथ उन स्टेट्स पे भी अप्लाई होगा जो कि गरीब हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आज तक हमारे पास उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल लॉ इन सबको कवर करता है। अगर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेटस इंटरनेशनल लॉ में क्या होगा, इट्स अ नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी स्टेट है जिसके कोई भी मतलब जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है टू बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो उसको ऑब्जर्विंग स्टेट कहा जाएगा। इंटरनेशनल लॉ ने उसको भी अपने जो है वो मतलब लॉ में रख दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेट डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग नहीं है, रिलेशंस नहीं रख सकती, तो थ्रू यूनाइटेड नेशन वो अपना स्टेटस गेन कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर सकती है और उसके बाद वो रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकती है, कारोबार कर सकती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जब हमारे पास बना तो यूनाइटेड नेशंस में एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ व्हिच इज इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसको हम इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। हर एक इशू के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया, हर एक इशू के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लॉज बनाए, हर एक इशू के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट ट्रीटीज साइन की, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन साइन किए, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रीटीज की, तो आज के दौर में ट्रीटी सिर्फ बिटवीन द स्टेट्स को नहीं कहा जाता, ट्रीटीज वर आल्सो कॉल्ड बिटवीन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लाइकवाइज
कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, ठीक है, आप यूनाइटेड नेशंस में आते हैं और यूनाइटेड नेशंस के साथ आप मिलकर हेल्प लेते हैं कि हमारे कंट्री को सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री चाहिए। तो आपने जो मिलिट्री मांगी यूनाइटेड स्टेट्स से, तो वो स्पेसिफिकली काम जो करेगी वो इस तरीके से करेगी कि आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मिलकर काम करेगी, और इस रिलेशन को बेसिकली ट्रीटी कहा जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रीटी एंड कन्वेंशन, ठीक है। अब अगर मैं ट्रीटी की बात करता हूं तो ट्रीटी जो है वो स्पेसिफिकली जो बनाई जाती है विच इज स्टैब्लिशिंग बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टेट टू स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन बात की जाती है, वो एक स्पेसिफिकली उनके बीच में एक जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रीटी कहते हैं, ठीक है। स्टेट टू स्टेट जो भी ट्रेड चलता है, जो भी उनकी बायलैटरल और यूनिलैटरल होती हैं ट्रीटीज, उनको जो है वो हम एक ऑल्सो ट्रीटी कहते हैं। कुछ बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं, कुछ मल्टीलैटरल ट्रीटीज होती हैं जिसमें बहुत सारे ममालिक मिलकर जो है वो ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन में क्या होता है कि इट्स लाइक जैसे हमारे पास पार्लियामेंट में जब लेजिस्लेशन की जाती है, ठीक है, जब पार्लियामेंट में हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो उस लेजिस्लेशन में क्या होता है कि सारे मिलकर लॉ बनाते हैं, ठीक है। सारे मिलकर अपना वोट करते हैं और वोट करने के साथ कहते हैं कि जी ये लॉ है, इस लॉ पे हमें कोई एतराज नहीं, ये लॉ इतना इस तरीके से काम करेगा, ये लॉ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फर्दर जो है वो आगे आए तो उस पर हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास लॉ है, जब सब उसके बीच में मिलकर वोटिंग करते हैं तो ये हमारे पास लॉ इनेक्ट हो जाता है। जब हम बात करते हैं कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन भी एक ऐसा लॉ बनाने का एक प्रोसेस है। सारी स्टेट्स मिलकर किसी एक जनरल डेवलपमेंट पे मिलकर काम करेंगी और लॉ बनाएंगी, ठीक है। अब ट्रीटीज में या तो 2 स्टेट होती हैं, ठीक है, या तो 2 से ज्यादा होती हैं, जिसमें मल्टीलेटरल ट्रीटीज भी आ जाता है, जिसमें यूनिलेटरल ट्रीटीज भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें बायलैटरल ट्रीटीज भी आ जाता है। लेकिन जब बात कन्वेंशन की जाती है तो उसमें सारे स्टेट्स मिलकर एक डॉक्यूमेंट, एक लॉ को अडॉप्ट करते हैं और उसको सब मिलकर फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले हमारे पास क्या था कि जितने भी स्टेट के बीच में ट्रीटीज होती थी, सपोज मैं आपको एक रफली एग्जांपल देता हूं, ठीक है। स्पेन एंड पुर्तगाल, स्पेन एंड पोर्चुगल के बीच में बायलैटरल ट्रीटीज होती थी, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि स्पेन और पोर्चुगल के बीच में एक ट्रीटी का ब्रीच हुआ, ठीक है, ट्रीटी ब्रीच हो गई, ट्रीटी ब्रीच हुई। अब वो चाहते हैं कि हम इस ट्रीटी के ब्रीच करने का जो अक्यूज करते हैं हम पोर्चुगल को करते हैं, ठीक है, कि भाई उन्होंने हमारी स्टेट के जितने भी पैसेंजर शिप्स थे उनको उन्होंने नहीं जाने दिया। अब जब हम इस पे देखते हैं करीब से तो हमें पता चला कि भाई यूनाइटेड नेशंस में तो ब्रीच ऑफ ट्रीटी का कोई लॉ ही नहीं बना हुआ, हमारे पास कोई कानून ही नहीं है ब्रीच ऑफ ट्रीटी का। तो फिर क्या हुआ, कन्वेंशन बुलाई गई। ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना में, वहां पे कन्वेंशन बुलाई गई और वहां पे सारी स्टेट्स को मिलकर बिठाया गया, ठीक है। और उस कन्वेंशन में क्या होता है, उस कन्वेंशन में सारी स्टेट्स के सामने डॉक्यूमेंट रखे गए, ठीक है। उसमें यह बताया गया कि अब ये जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का नाम है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में यह लिखा गया कि कैसे अगर कोई स्टेट ट्रीटी ब्रीच करती है तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे एक स्टेट ट्रीटी जो है वो किस तरीके से ऑब्लाइज करेगी, कैसे फॉलो करेगी, उसमें यह बताया गया। अगर कोई एक स्टेट ब्रीच ऑफ ट्रीटी करती है तो उसके अगेंस्ट में क्या पनिशमेंट है, एक स्टेट को ट्रीटी फॉलो करनी है तो उस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक स्टेट को ट्रीटी टर्मिनेट करनी है तो उसके क्या जो है वो मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर इन सबको एक कन्वेंशन में डिस्कस किया गया, उस पर फिर वोटिंग हुई। फिर कहा गया स्टेट्स को कि भाई आपके पास चॉइस है, या तो आप इस वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज को या तो आप साइन करो। साइन करने का मतलब यह है आप उसको एज अ लॉ एक्सेप्ट करो, ठीक है, ना तो आप डिनाई करते हो ना तो आप उसको फॉलो करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है ये लॉ है, बट हम इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे। हम रेगुलराइज क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमें ठीक लगेगा तो हम इसको रेगुलराइज करेंगे।
ठीक है। दूसरा उसमें ऑप्शन आता है रेक्टिफिकेशन। कंट्रीज ने क्या किया कि उसको रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने का मतलब ये कि जी हम इसको लॉ के तौर पे कबूल करते हैं, वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज, और उसके साथ साथ जो है हम इसको फॉलो भी करेंगे। यानी कि जितनी भी हमने अभी तक ट्रीटी की हैं, सपोज मैं एक कंट्री हूं, ठीक है, मैं इंडिया हूं, मैंने वियना कन्वेंशन जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 2 से 3 ट्रीटीज ब्रीच की हुई हैं पाकिस्तान के साथ। तो अब जब मैंने वियना कन्वेंशन डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, तो वो साइन करने के बाद मैं बाउंड हो गया। मैं बाउंड हो गया कि हाँ भाई, मुझे जो है वो अभी इसको प्रॉपर फॉलो करना है, अभी मुझे इसको प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से फॉलो करके सारी चीजें जो है वो मुझे वियना कन्वेंशन के मुताबिक इसको एक्सेप्ट करके चलाना है। ठीक है। तो कन्वेंशन जो होती है वो जब रेक्टिफाई हो गई तो वो सब पे बाइंडिंग हो जाती है। अब यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं यूनाइटेड नेशंस में, जितने भी लॉ बनते हैं, तो यूएन चार्टर के जितने भी लॉज बनेंगे, सारे कंट्रीज ने मिलकर उन डेवलपमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। तो वियना कन्वेंशन जो हमारे पास बनी वो सारी इस यूएन चार्टर के मुताबिक सब पे बाइंडिंग हो गई। आप सिग्नेटरी हो ठीक है, लेकिन अगर आप रेक्टिफाई हो गए तो आप बाउंड हो गए। लेकिन आप बाउंड नहीं हो, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट आपको करना बाइंडिंग है, यानी कि वियना कन्वेंशन यू आर द सिग्नेटरी, तो रिस्पेक्ट करना इट शुड बी द बाइंडिंग फॉर यू। ठीक है जी। अब हम आते हैं फर्दर कि हमारे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन जे स्टार्क साहब ने बताई थी, आई होप के आई हैव क्लियर द आंसर। ठीक है। अब हम आते हैं फर्दर कि हमारे पास जब नॉन स्टेट एक्टर्स, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, तो हमारे पास इसमें सब्जेक्ट्स में स्टेट्स भी आती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं और इंडिविजुअल्स भी आते हैं। अब यहाँ पे हम नॉन स्टेट एक्टर में हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो काम करती हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स करती हैं, ये सारी की सारी जो है वो आपके सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में है। सेम तरीके से जी कन्वेंशन बुलाई जाती है, इसी तरीके से कन्वेंशन में लॉज डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जितनी भी हमारे पास वर्ल्ड में काफी ऐसी चीजें चल रही थी जो कि पीस के अगेंस्ट थी। जैसे कि एक मैं आपके सामने शेयर करूं कि वेल्स जितनी भी हैं, वेल इज अ सी एनिमल व्हिच इज अ बिग एनिमल, लेकिन वेल्स का शिकार बहुत ज्यादा किया जाता था। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि वेल के शिकार को रोकने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बनाया, एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें कन्वेंशन साइन की गई और सेम तरीके से बोला गया कि भाई वेल का अभी कोई भी शिकार नहीं करेगा। ठीक है। तो उसको पाबंद करने के लिए सबके साथ उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साइन किया। इसी तरीके से 1980s और 1970s में आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे पास वुमेन राइट्स जो थे वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे अफेक्ट हो रहे थे, तो उनके लिए भी उन्होंने लॉज बनाना स्टार्ट किए। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बनी, उसके अलावा हमारे पास सीडा भी हमारे पास बनी। ठीक है। कन्वेंशन ऑन एसेंशियल डेवलपमेंट ऑन द वुमेन राइट्स। ठीक है। वुमेन राइट्स की जो बात करता है, चाइल्ड राइट्स के अगेंस्ट में भी जो है वो कन्वेंशंस बनाई गई। इसके साथ साथ और भी हमारे पास जितनी जितनी डेवलपमेंट्स होती थी उतनी वो कन्वेंशंस बनाई गई हमारे पास। ठीक है। अब हम फर्दर आगे आते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्पेसिफिकली पीस हार्मनी उसको जो है वो इंश्योर करता है। ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपके साथ में शेयर करूं, व्हिच इज आर्टिकल 38, जो कि बात करता है कि जितनी भी हमारे पास प्रीवियस प्रैक्टिसेस, प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन, जैसे कि इंटरनेशनल वॉर क्राइम का मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे इन चीजों को कवर करते हुए लेके चलता है। ठीक है। अब हम इसको फर्दर प्रोसेस करें, फर्दर अगर हम आगे जाएं तो मैं आना चाहूंगा टू एक्सप्लेन कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किस तरीके से यूनिट में डिसाइडेड थी। ठीक है। इस तरीके से यूनिट में डिसाइडेड थी। हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ये इनका पूरा एक डिवीजन था, वो एक स्पेसिफिक बनाया गया और फिर उनको डिवाइड किया गया। ठीक है। हर तरीके से उनको डिवाइड किया गया, हर तरीके से उनका काम किया गया। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। यस। No, sir, it's clear. Okay, so what's the time in Pakistan?
Sir, 10-5. Okay, Miss Sayyida, she has a question. Okay, okay. ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो है वो मतलब डिसआर्ममेंट ऑफ द कंट्रोल, सही है। एंड उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको टेररिज्म और इससे रिलेटेड भी जो है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर हम इस पे क्लियरली जो है वो उसको एनालाइज करें कि किस तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल डिस्प्यूट किस तरीके से होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में हमारे पास यूएन चार्टर है जो कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करता है। आई होप कि आपको स्पेसिफिकली ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स काम करते हैं, किस तरीके से हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल सोर्सेज जो है वो काम करती हैं, कैसे हमारा इंटरनेशनल लॉ एक डिफाइंड लॉ की तहत जो है वो आगे चलता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कि किस तरीके से सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है वो उनको वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है। और सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने मेजर्स लेता है, किस तरीके से जो है वो यूएन काम करता है, उस पे जो है वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूं, ठीक है। डज यू ऑल हैव द यूएन चार्टर? आप सबके पास यूएन चार्टर है? Let me share with you otherwise. Just hold on a second. I'm sharing with you the UN Charter. One is UN Charter is visible now. I hope everyone can see it. ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अब हम जो भी डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिकली विथ यूएन चार्टर, ठीक है। यूएन चार्टर में बेसिकली बताया गया है कि किस तरीके से यूएन चार्टर के ऑर्गन्स मतलब यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन किस तरीके से काम करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और किस तरीके से जब भी सिचुएशंस आती हैं या जब भी कोई स्पेसिफिकली जब भी कोई सिचुएशन अगर आती है विच इज रिलेटेड टू द वॉर, तो किस तरीके से यूएन जो है वो उसमें एक्ट करेगा, किस तरीके से यूएन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसमें पूरी करेगा, और कैसे यूनाइटेड नेशन जो है अगर कोई भी एक्शन विच गॉन विथ अ वेरी अग्रेसिव इन नेचर, तो किस तरीके से उसको जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो नाउ ऑन द यूएन चार्टर अगर आप देखें तो हमारे पास जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वॉर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन विथ एवरीवन के वॉर्स कितने टाइप्स की हैं?
आज के दौर में हमारे पास वॉर्स कितने टाइप की हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन प्लीज? यस, economical war, Awais said okay. Anyone else? देखें, हम बायोलॉजिकल वॉर, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखें, वॉर्स के बहुत सारे टाइप हैं हमारे पास, ठीक है। आपको वॉर को समझने के लिए हमें वॉर के काफी ऐसी, ये साइबर वॉर्स आके, ओके राइट, ठीक है। अब हम फर्दर अगर वॉर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली वैसे तो बहुत सारे वॉर्स के टाइप है, लेकिन इस एरा में हमारे पास जितनी वॉर्स चल रही हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज सिविल वॉर। सिविल वॉर हम किसको कहते हैं? जब एक स्टेट के अगेंस्ट उसकी पूरी की पूरी जो मतलब जो उसके लोग हैं वो उस स्टेट के अगेंस्ट हो जाएं, व्हिच इज कॉल्ड अ सिविल वॉर, ठीक है। सिविल वॉर का एग्जांपल एग्जैक्टली मैं आपको दूंगा। सीरिया में सिविल वॉर हुई, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। chemical war and biological wars are basically the biggest type of the conflict, ठीक है। It's also a good answer, लेकिन moving forward कि हमारे पास सिविल वॉर्स हुई बिटवीन मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ द कंट्रीज, सिविल वॉर जो है वो हमारे पास चली हैं। अब ईरान में भी सिविल वॉर चल रही है अगेंस्ट द आयतुल्लाह खुमैनी रजीम, ठीक है। इस तरीके से इसराइल में भी ऑलरेडी अभी वॉर एक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, अगेंस्ट देयर कंट्री, अगेंस्ट देयर कंट्रीज डिसीजन, ठीक है। सिविल वॉर जो भी होती है वो अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के बीच में बैठ के, स्टेट के अंदर जो उनके लोग बैठे हैं, दीज आर अगेंस्ट रिवोल्ट, वो रिवोल्ट करते हैं और उन रिवोल्ट के अगेंस्ट में वो एक वॉर जो है वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास आती हैं प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर्स हम किसको कहते हैं? देखें, आज के टाइम में हमारे पास कोई भी स्टेट बॉर्डर पे जाके सोल्जर्स खड़े करके नहीं लड़ती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शेलिंग होती है, थोड़ा बहुत मतलब जो है वो थोड़ा बहुत फायर हो गया, या थोड़ा बहुत जो है वो मतलब बॉर्डर कंट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ हो गया। लेकिन आज का जो दौर है, इट्स नॉट अबाउट द वॉर जो कि आज के टाइम में की जाती हैं, ठीक है। आज के टाइम में जो वॉर्स होती हैं, या तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर हम किसको कहते हैं? प्रॉक्सी वॉर हम कहते हैं बिटवीन द वॉर्स बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, बिटवीन द इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसीज। आज के टाइम में हमारे पास काफी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो मिलकर काम करती हैं, जो मिलकर वॉर करती हैं, ठीक है। हर कंट्री की अपनी अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपको कभी कभी सुनने को मिलता है कि फला बंदा जो है वो फला स्टेट से अरेस्ट हुआ ऑन अ चार्ज ऑफ एस्पियोनाज, ठीक है, फला कंट्री का स्पाई पकड़ा गया। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर चलती है। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट का पानी बंद कर दे, जैसे कि हमारा इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है आजकल, ठीक है। सेकेंडली, एक स्टेट दूसरी स्टेट का जो है वो मतलब सी वे बंद कर दे, उसका सी और पूरा का पूरा समुद्र का रास्ता बंद कर दे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी होती हैं वो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रॉक्सी वॉर करती हैं। प्रॉक्सी वॉर इज टेक्निकली कॉल्ड वॉर्स बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। हर कंट्री की अपनी एजेंसी है। अमेरिका की CIA है, पाकिस्तान की ISI है, इसराइल की मुसाद है, ठीक है, रशिया KGB है, एंड ऑल्सो फॉर अ ब्रिटिश MI6। इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। लेकिन उसमें एक और भी चीज हमारे पास सामने आती है, कुछ ऐसी जो है वो मतलब कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जो किसी स्टेट का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। लाइकवाइज सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक वाटर इज अ सिक्योरिटी एजेंसी। उसका क्या काम होता है? वो एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है? कोई भी स्टेट उसको पैसे दे दे कि भाई पाकिस्तान तुम्हें पैसे दे रहा है, इंडिया में जाके तुम वहां का पीस खराब करो, वहां की आर्मी से जाके लड़ो और वहां पे जाके जो है ना तुम उनके लोगों को मारो, ठीक है। ये दिस इज द वे ऑफ वर्क ऑफ ब्लैक वाटर इज लाइक अ कॉल्ड एज अ मर्सिनरीज। इंटरनेशनल लॉ उसको मर्सिनरी कहता है, ठीक है। इसी तरीके से जब सीरिया में वॉर चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने एक ग्रुप को जो है वो फंडिंग दी, उनको जो है वो वेपन्स दिए, व्हिच इज कॉल्ड कुर्दिश।
जिनको हम कुर्दिश कहते हैं, कुर्द्स, उनको 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 ये लालच थी कि भाई देखो तुम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप हो, तुम्हारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, सीरिया में जाओ, सीरिया में जाके तुम वॉर लड़ो और अपना एक स्टेट का टेरिटरी एक हिस्सा ले लो, ठीक है। तो इनको कहा जाता है मर्सिनरीज, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी इंडिपेंडेंट जो है वो मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज थी जो कि किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करती, उनके सीक्रेट हाइडआउट्स हैं, उनके सीक्रेट जो है वो नेम्स हैं, लेकिन वो एक स्टेट में जाती हैं, वहां का पीस खराब करती हैं, वहां की वॉर में शामिल होती हैं और शामिल होने के बाद जो है वो उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करती हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द वे जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। चलें जी, थर्ड जो वॉर का टाइप है उस पर हम आते हैं, विच इज अ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किसको कहते हैं? इसको सिंपली यूं कहा जाता है कि दो स्टेट्स आपस में इनडायरेक्टली लड़ें। इनडायरेक्टली कैसे? कि एक स्टेट का मिलिट्री पावर है तो दूसरी स्टेट उसके साथ मिलिट्री पावर अपना स्टेब्लिश करेगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि व्हाई ईरान एंड इसराइल वॉर हैपेंड, ईरान और इसराइल की वॉर हुई क्यों, उसका रीजन क्या था? बेसिकली देयर इज अ माइंड गेम व्हिच इज प्लेइंग बाय अमेरिका। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है, द विजन ऑफ अमेरिका इज कि चाइना इज ग्रोइंग इट्स इकोनॉमी, चाइना बहुत अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। The world of this century is called economic power, century of economic power। जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी वो कंट्री कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द इकोनॉमिक पावर, वो उस इकोनॉमिक पावर का जो है वो मतलब होल्डर होगा, ठीक है। अमेरिका वांट्स के वो एशिया में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है, बट ही कैन नॉट कंट्रोल चाइना, वो चाइना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके अलावा अमेरिका वांट्स दैट के किसी तरीके से चाइना वॉर में आ जाए, चाइना शुड हैव टू कम इन अ वॉर, ताकि चाइना जो है वो अपनी जितने भी उनके सारे के सारे उनके जो है वो ट्रेड और ट्रीटीज चल रही हैं उनको वो डिस्टर्ब कर सके, ठीक है। नंबर 4, ईरान अगर मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो अमेरिका के लिए एशिया में कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एशिया में चाइना भी है, एशिया में रशिया भी है, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है। एंड थर्ड अगर न्यूक्लियर पावर आपकी आ गई ईरान, तो विच इज आल्सो द बिगेस्ट इशू फॉर द अमेरिका। अब ये जो सिचुएशन अमेरिका ने बनाई विच इज फॉर द चाइना, ठीक है, ताकि चाइना किसी तरीके से डिस्टर्ब हो। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं पास्ट हिस्ट्री में, 1946 से लेके 1991 तक अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में वॉर लड़ी गई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। इट्स कॉल्ड अ कोल्ड वॉर, इसका नाम है कोल्ड वॉर, ठीक है, जिसमें स्टेट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन वो स्टेट्स मिलकर आपस में अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, अपने जो है वो मतलब रिसोर्सेज को एक्सपेंड करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरीके से हमारे पास कोल्ड वॉर हुई बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिका, तो अमेरिका इज गोइंग गुड इन द टेक्नोलॉजी, वो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा था, वो अपनी जो है वो मतलब न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा था। आप देखें 1946 से लेकर 1961 तक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया गया है, ठीक है। सीरीज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है दे वर टेस्टेड एंड सो हार्ड इट वाज टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई ऐसी स्टेट्स में वॉर लड़ी गई, लाइकवाइज के रशियन यूएसएसआर जो थी वो अफगानिस्तान में आई, क्यों आई? बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। व्हाई? बिकॉज अमेरिका वांट्स टू कंट्रोल द एशिया, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें तो अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम कर रहा था। व्हाई? बिकॉज यूएसएसआर इज गिविंग द कंपटीशन टू अमेरिका, ही इज गिविंग द कंपटीशन, जिसने कंपटीशन दिया था अमेरिका को। क्या कंपटीशन दिया था? यूएसएसआर इज लॉन्चिंग, रशिया वाज लॉन्चिंग एट दैट टाइम देयर स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ स्पेस सैटेलाइट, लेकिन अमेरिका वाज आल्सो वांट टू काउंटर दैट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर आपकी चलती रहती है और ये स्टिल अभी तक इनडायरेक्टली चलती है। फर्स्टली इट वाज शिफ्टेड बिटवीन रशिया एंड यूएसए, नाउ इट इज शिफ्टेड बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ठीक है। दैट्स द थर्ड पार्ट ऑफ द वॉर। नंबर अगर हम 4 की बात करें, which is as simple as called as hybrid warfare। हाइब्राइड वॉरफेयर हम किसको कहते हैं? इट्स लाइक अ जनरेशनल वॉरफेयर, डिजिटलाइजेशन वॉरफेयर, लोगों को इन्फ्लुएंस करके, जनरेशंस को इन्फ्लुएंस करके
अपनी ही चीजें मनवाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। अब हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? आप जितना भी आप यूट्यूब चलाते हो, आप जितना भी जो है वो सोशल मीडिया यूज करते हो, रील्स देखते हो, ठीक है, आपको जो भी चीज दिखाई जाती है, ठीक है, जिसके फेवर में जो है वो आप बात कर सको, जिसके अगेंस्ट में आप बात कर सको, इट्स कॉल्ड अ हाइब्रिड वॉरफेयर। आपके जितना भी डिजिटल डेटा है, इट इज अ कंट्रोल ऑफ अदर स्टेट्स, उनको स्टेट्स कंट्रोल करती हैं, आपके डेटा को यूज करती हैं, ठीक है। आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी रील, कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो कंटेंट दिया जाता है जिससे आपका माइंड इन्फ्लुएंस हो, जिससे आपका माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस हो सके, जिससे आपका जो ओपिनियन है उसको जो है वो मतलब चेंज किया जा सके। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली इलेक्शन हुई थी, तो पहली इलेक्शन जब अमेरिका में हुई थी तो उसमें ये बोला गया था कि अमेरिका में ट्रंप को रशिया ने पहला इलेक्शन जितवाया। भाई रशिया ने कैसे जितवाया? बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग टू द माइंड ऑफ द पीपल, जो भी उनका माइंड है लोगों का, जनरेशंस का, वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे? टू प्रोपगेटिंग, टू एक्सपेंडिंग द कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को एक्सटेंड किया जा रहा था, कंटेंट को उनके दिमाग पे अटैक किया जा रहा था कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। आजकल जो आपका ओपिनियन डिसाइड होता है, दैट इज नॉट प्योरली डिसाइड ऑन योर ओन रिसर्च। आपका ओपिनियन डिसाइड किया जाता है या तो एक रील से, या तो कोई यूट्यूब की वीडियो से, या तो किसी यूट्यूब चैनल से, या तो फिर किसी न किसी एक एनालिस्ट की बात से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। कई बार आपको यह भी बताया गया होगा कि भाई इसराइल और फलस्तीन की वॉर में ईरान ने कुछ नहीं किया, ठीक है, मतलब ये भी बताया गया होगा कि ईरान के अंदर ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको यह भी बताया गया होगा कि चाइना कभी गलत नहीं कर सकता क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। इसी तरीके से आपको यह भी कभी कभी बताया गया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान हमेशा जीतता आया है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया अपनी जनरेशन को टारगेट करता है, हर कंट्री अपनी जनरेशन को टारगेट करता है। इसी तरीके से जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, आपके इन्फ्लुएंस को चेंज करने के लिए ये आपके साथ हाइब्रिड वॉरफेयर की जाती है। दिस इज कॉल्ड अ जनरेशनल वॉरफेयर, ठीक है। जो हम यंग जनरेशन है, जो आप यंग जनरेशन हो, अगर आपको किसी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी आपको इंटरनेशनल प्रोपागेंडा को मानना है तो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा डिजिटलाइजेशन बहुत है। मैं आपके सामने एक चीज रखूंगा कि इन 2011 एंड 2012 में क्या होता है कि ईरान एंड इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के चक्कर में क्या होता है सर, ईरान डिसाइडेड दैट कि हम जो है वो इसराइल पे अभी अपने जो है वो जितने भी मिसाइल्स हैं हम उनको अटैक करेंगे, हम इसराइल पे अटैक करेंगे। व्हाट इसराइल डिड, इसराइल ने जितने भी ईरान के वेपन्स थे, जितने भी मिसाइल्स थे, उनके उसने कोड्स और कोऑर्डिनेट्स हैक कर लिए, ठीक है। और कोड्स और कोऑर्डिनेट्स हैक करने के बाद, क्योंकि जो भी कोई मिसाइल फायर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसका प्रॉपर एक होमवर्क होता है, उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स बना के उसको फायर किया जाता है। लेकिन इसराइल ने सारे उनके जो कोड्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हैक कर लिया। इस ऑपरेशन को इसराइल ने नाम दिया व्हिच इज कॉल्ड ऑपरेशन स्पुतनिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन स्पुतनिक। तो ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ वॉर, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। किसी के डेटा को हैक करना, किसी के डेटा को कंट्रोल करना, किसी के माइंड को कंट्रोल करना, किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करना, इट्स कॉल्ड हाइब्रिड वॉरफेयर, जो हमारे पास आज के टाइम में चलती आई है, ठीक है। अभी वॉर से रिलेटेड हमारे पास यूएन चार्टर क्या कहता है, किस तरीके से वॉर्स को रोका जा सकता है, हमें यूएन चार्टर जो है वो सिंपल बताता है, व्हिच इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। हमारे पास सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने एक हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसको कहते हैं पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आपके सामने आर्टिकल 33 है, ठीक है, आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 38 तक ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस जो है चार्टर, इसके बारे में बताता है कि किस तरीके से जो है वो वॉर को रोका जाए, किस तरीके से पीसफुल ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट किया जाए। देखें, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, आई वुड नॉट रीड एनी स्पेसिफिक आर्टिकल। अगर हम बात करते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि मैं बात करूंगा डायरेक्टली 1960s
इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। उस टाइम पे कोल्ड वॉर भी चल रही थी, यूएसएसआर एंड यूएसए। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का पीस ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई, तो कैसे की गई, किस तरीके से पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हुआ। नंबर पहला, अगर यूनाइटेड नेशंस कहता है कि दो मुल्कों के बीच में डिस्प्यूट है, तो सबसे पहले उसको नेगोशिएशंस करके सॉल्व करो। कौन करेंगे नेगोशिएशन? बिटवीन टू स्टेट्स। बिटवीन टू स्टेट्स के बीच में कौन? जिसको कहते हैं गुड ऑफिसेस। नंबर वन जो स्ट्रेटजी है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को हल करने की, किसी भी डिस्प्यूट को हल करने की, विच इज गुड ऑफिसेस, यानी कि हर स्टेट की जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी उनके एम्बेसडर्स हैं, और जितने भी जो है वो मतलब पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, वो मिलकर आपस में बैठ के पीस टॉक करेंगे, बात करेंगे कि यार वॉर को खत्म करो, ये मतलब जो है वो आप चीज कर रहे हो ये बुरी है, इससे क्या होगा कि मतलब वो दे विल ट्राई टू कन्विंस, ठीक है। पहला जो है वो मतलब रोल होगा गुड ऑफिसर्स का। अब गुड ऑफिसर्स क्या करेंगी? जितने भी जो भी हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको मिलाकर बिठाएंगी, ठीक है, कि भाई आप आपस में आके मिल बैठ के बात करो। चलें, गुड ऑफिसर्स फेल हो गई, मतलब दो स्टेट्स की जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्होंने आपस में बैठ के बात करना चाहिए, लेकिन वो हल नहीं हुई। इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास अभी इंडिया पाकिस्तान का जब एक मामला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वॉर एक स्टार्ट हुई थी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया ना आप हमें सुन रहे हैं, ना हम किसी तीसरे कंट्री को सुन रहे हैं, क्यों ना हम एक जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत में चलते हैं, वहां पे चल के अपने मसले को हल करते हैं। अभी वो कैसे मसला हल होगा? वो सिंपल जो है वो मसला ऐसे हल होगा कि आप उस मसले को हल करने के लिए बैठ के केस प्रोसीड करेंगे बिटवीन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देयर जजेस। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो मसला और केस पूरा चलेगा, और उस प्रॉपर केस को चलाने में एक और भी चीज होगी, स्पेशल एग्रीमेंट तो साइन होगा ही, लेकिन दोनों कंट्रीज में से एक एक जज को एज एडहॉक जज बिठाया जाएगा, और वो एज एडहॉक जज जो है वो जजमेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। दोनों स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस कोर्ट केस में होंगे, और उनके स्पेसिफिक अटॉर्नीज होंगे जो उन केसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स द वे ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अब लास्ट चीज आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी मसला हल नहीं होता। एक स्टेट जो है वो अग्रेशन कर रही है, बार बार वॉर कर रही है, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया को भी किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। दैट इज बिटवीन 2016 एंड 17। नॉर्थ कोरिया और उसके साथ सऊदी अरेबिया, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया कि उसको स्पेसिफिकली रोकने के लिए सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि भाई नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करो, उनको रोको। अब नॉर्थ कोरिया वाज नॉट स्टॉप। अब हमारे पास यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई भी स्टेट जो वॉर करने से नहीं रुक रही हो, तो उसके पास भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, व्हिच इज Chapter 8, Actions with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression. अब इस स्पेसिफिक चैप्टर में ये बात की जाती है कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन अपने अग्रेसिव स्टेप लेगा उस स्टेट को वॉर से रोकने के लिए। सबसे पहले सर काम ये किया जाएगा कि जैसे कि नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर हमने उस स्टेट को रोकना है तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्या? उस स्टेट पे लगा दो इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है। वन ऑफ द इनिशियल एंड अग्रेसिव स्टेप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कि आप उस स्टेट के अगेंस्ट में लगा दो इकोनॉमिक सैंक्शंस, ताकि वो स्टेट किसी भी दूसरे कंट्री से तिजारत ना कर सके, कोई भी ट्रेड ना कर सके, ठीक है। अब सेकंड जो है वो, अगर इसके बाद भी उस स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सेकंड जो स्टेप उठाया जाता है व्हिच इज ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या कहा जाता है सर? ब्लॉकेड उस स्टेट के अगेंस्ट में समुद्री ब्लॉकेड लगाई जाती है, यानी कि उस स्टेट का जितना भी सी है उसको ब्लॉक किया जाएगा।
यानी कि कोई भी शिप वहां से नहीं आ सकता, उसका एयर स्पेस ब्लॉक किया जा सकता है, यानी उस स्टेट का कोई भी एयरक्राफ्ट किसी दूसरी स्टेट के टेरिटरी में नहीं जाके फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद भी वो स्टेट वॉर से नहीं रुक रहा, तो देन यूएन पीस कीपर्स फोर्स जो है वो उसके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करेगी, उसके बॉर्डर्स को रोकेगी और उस स्टेट के मिलिट्री के अगेंस्ट ऑपरेशन करेगी, ठीक है। दैट्स द वे ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, दैट्स वे यूनाइटेड नेशंस इस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑल टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछें, एंड एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क, सो प्लीज, बिकॉज आई गेस टाइम बहुत ज्यादा मैंने आपका ले लिया है। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछें, सो देन वी कैन डिस्कस फर्दर। जी, I will share the slides as well. Okay. अब आप फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसने भी कुछ भी सवाल पूछना है। हेलो सर। यस यस सर, ये जो एग्रेसिव स्टेप्स की बात आपने की है, तो सर ये स्पेसिफिकली दोनों स्टेट के लिए होगी या सिर्फ एक स्टेट की होगी? देखें, जो स्टेट पीस डिस्टर्ब कर रही है, पीस ब्रीच कर रही है, वो उस स्टेट के अगेंस्ट में होगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी दूसरी स्टेट शामिल नहीं होगी। सपोज मैं बात फिर भी नॉर्थ कोरिया की यहाँ पे एग्जांपल देके करूंगा कि नॉर्थ कोरिया बार बार अगर वॉर एस्केलेट कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में जितनी भी मतलब यूनाइटेड नेशंस की एक फोर्स है व्हिच इज कॉल्ड यूएन पीस कीपिंग फोर्स, उस फोर्स में दुनिया की हर आर्मी, दुनिया के हर जो है वो इंटरनेशनल जो भी आर्मी है, वहां के सोल्जर्स उस यूएन पीस कीपिंग फोर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाके वो मतलब यूएन पीस कीपर्स फोर्स बनती है, वो फोर्स उस स्टेट के अगेंस्ट ऑपरेशन करेगी, ठीक है। उस स्टेट के अंदर इन्वेजन भी कर सकती है, उस स्टेट के अगेंस्ट जो है वो मतलब कोई भी वो ऑपरेशन लॉन्च करना चाहे कर सकती है। दैट विल बी डन बाय यूएन पीस कीपर्स फोर्स, ना कि कोई दूसरी स्टेट। क्योंकि अगर कोई दूसरी स्टेट उस स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन लॉन्च करेगी, व्हिच इज अगेन द एस्केलेशन ऑफ वॉर, वो एस्केलेशन ऑफ वॉर हो जाएगा। जैसे अभी ईरान और इसराइल का मामला चल रहा था, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि भाई यूएन पीस कीपर्स फोर्स को भला लेकर आओ, उनके अगेंस्ट जो है वो यूएन पीस कीपर्स फोर्स जानी चाहिए। तो एक तरीके से ये बात की जा रही थी, बट दैट वाज नॉट अप्लाइड एट दैट टाइम। Yes, I hope it's clear. Okay, it's a good question by Abdul Qadir and I highly appreciate to that. इनका ये सवाल है कि इंटरनेशनल लॉ आज भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वॉर्स को रोकने में फेल गया है एंड वीक नेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम उसको लॉ मानेंगे या फिर इट्स कॉल्ड अ ग्लोबल डिप्लोमेसी? देखें, जब देयर इज अ टू थिंग्स व्हिच हैज टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। हमारे पास जो पिछली सेंचुरीज में जब भी वॉर की गई है, तो वो एक इस रीजन की वजह से की गई है, व्हिच इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी कैसे कि एक स्टेट है अपने आप को बना रही है, हर तरीके से बना रही है, पैसे में, मिलिट्री में। अभी आजकल तो हमारे पास वेपन्स का जो है वो बहुत ज्यादा चलता है कि हमारे पास वेपन्स हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज तक इतनी बड़ी वॉर नहीं हो पाई है आफ्टर 1999। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन है। जब दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो पूरी दुनिया नहीं चाहेगी कि दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो, ठीक है। अब आज तक इंटरनेशनल लॉ बहुत सारी ऐसी वॉर्स हैं जिनको वो रोकने में नाकाम रहा है, ठीक है, जिनको वो रोक नहीं पाया है। नाउ हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारे पास आज जो स्टेट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी आती है सुपर पावर स्टेट। सुपर पावर स्टेट हमारे पास कौन है? व्हिच इज ओनली एंड ओनली के पीछे टेस्ट होते गए टेस्ट होते गए। फिर 1961 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई। तो
इससे हमें क्या चीज समझ आती है कि अगर एक स्टेट सुपर पावर है तो उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज ये कि वो सुपर पावर स्टेट किसी भी दूसरी स्टेट के अगेंस्ट में कोई भी चीज इलीगल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इसराइल का जो सिटी है जेरूशलम, जो जेरूशलम है, उसको इसराइल का एक कैपिटल डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। जो जनरल असेंबली में जब इजलास हुआ था तो उसको रोका गया था, ठीक है, और सारे की सारी जो वोटिंग हुई थी वो अमेरिका के अगेंस्ट में हुई थी। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टू एक्सप्लेन इज दैट कि हमारे पास एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ जो काम करता है वो काम करता है इन अ वे ऑफ डुअलिस्टिक, इन अ वे ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी में, ठीक है। एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानती है, एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ को सिर्फ एक लॉ मानती है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान हैज अ डुअल नेचर ऑफ लॉ, वो इंटरनेशनल लॉ को एज अ पार्ट ऑफ लॉ मानता है लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं मानता। यूएसए, ब्रिटेन, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं। लेकिन हमारे पास जितनी भी वॉर्स होती हैं इसके दो रीजंस हैं। वन इज बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होना, ठीक है। अमेरिका ने बहुत हद तक बैलेंस ऑफ पावर को या तो मेंटेन रखा है या तो डिस्टर्ब रखा है। अब जो आज हम देखते हैं ईरान के अगेंस्ट अमेरिका ने किया, तो दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर हमारा डिस्टर्ब हुआ, बिकॉज इसराइल कैन नॉट गेट कंट्रोल, इसराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो होल वर्ल्ड जो भी था उसने इसराइल के साथ अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात खत्म कर दिए। द ओनली स्टेट इज सपोर्टिंग इज अमेरिका। तो बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्लोबल डिप्लोमेसी, ठीक है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी। जितनी भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उसके साथ इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली काम करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉ की नेचर समझनी पड़ेगी। लॉ की नेचर, हमारे पास क्रिमिनल लॉ जो भी आता है तो हमारे पास क्रिमिनल लॉ एक बाइंडिंग नेचर रखता है, वो बाउंड करता है स्टेट्स को कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग नेचर का अभी तक उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है। बहुत हद तक ये डेवलप है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें ऐसी वीक स्टेट्स हैं जो इन बहुत सारी चीजों को पूरा नहीं कर पाती। इस वजह से इंटरनेशनल लॉ काफी कंपोनेंट्स में वीक है, जिसपे उसके हवाले से डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट प्रोवाइड द जस्टिस, ठीक है। आप देखेंगे कि जब भी ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ तो उसको रोकने के लिए जो है वो मतलब बहुत हद तक जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी काम किया, हर कंट्री ने उसको रोकने की कोशिश की टू नॉट एस्केलेट द वॉर, ठीक है। अब एक स्टेटस हमारे पास सुपर पावर स्टेट का है, दूसरा हमारे पास जो स्टेटस आता है वो मीडियम सुपर पावर स्टेट्स का आता है, ठीक है। मीडियम कौन से आते हैं? इसमें रशिया आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है, जर्मन आते हैं। दे आर नॉट सुपर पावर बट दे हैव अ मीडियम सुपर पावर। अगर 4 स्टेट्स अगेंस्ट द अमेरिका के हो जाएं तो अमेरिका डज नॉट हैव अ स्टैंड द चांस टू अगेंस्ट देम। एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रखा गया है। 4 स्टेट्स को आप एक जगह पे रखो और अमेरिका को आप दूसरी जगह पे रखो, ठीक है। अगर ये चारों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना, ये 4 स्टेट्स अगेंस्ट हो जाए अमेरिका के, तो अमेरिका डज नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि दीज 4 स्टेट्स आर मीडियम सुपर पावर स्टेट्स। इन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है। जब बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया तो इस तरीके से कोई भी स्टेट नहीं चल पाएगी। जैसे कि अभी ईरान और इसराइल की वॉर में जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेज के जो है वो मतलब मिसाइल लॉन्च की और वो अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उन्होंने अपने डीप पेनिट्रेटेड बॉम्बर्स जो है वो जब उन्होंने डिप्लॉय किए, तो चाइना की स्टेटमेंट आप देख लें और रशिया की स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर अमेरिका अपनी कोई भी लैंड या फोर्स जो है वो मतलब ईरान में डिप्लॉय करेगा तो हम भी जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट सैंक्शंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और हम ब्रिटेन और फ्रांस इनके अगेंस्ट हम जाएंगे, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो गई थी यहाँ पे, उसके बाद कंट्रोल किया गया इस चीज को, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो एक तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी भी चलती है और बैलेंस ऑफ पावर भी डिस्टर्ब होता है।
तो जहां भी बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है तब जाके वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक तरीके से लीगली प्रोटेक्ट नहीं करता। दे डज प्रोटेक्ट लीगली, बट बहुत सारे बैलेंस ऑफ पावर्स और चीजों को जो है वो मतलब इट्स नॉट कंट्रोलेबल, वो बहुत सारे कंट्रोल में नहीं होते, जिस वजह से वॉर क्रिएट होती है, जिस वजह से इंटरनेशनल लॉ गॉट वीकर इन दैट सिचुएशन। ओके, आई होप इट हैज क्लियर्ड योर आंसर। ठीक है जी, कोई और सवाल है पूछना चाहें रिलेटेड टू एनीथिंग, इट्स वार्म वेलकम। आप मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम यू गाइस वांट टू कनेक्ट मी। एंड उसके अलावा इफ एनीवन वांट्स लाइकवाइज कि आप अगर अपना फर्दर अब्रॉड अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं, एनी टाइम एनीवन कैन अप्रोच मी, एनीवन कैन आस्क मी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। फॉर फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, ओके। एंड द स्लाइड्स आई विल शेयर विथ यू, मैं आपके साथ स्लाइड्स सारी शेयर कर लूंगा। एंड वी विल नाउ क्लोज आवर क्लास टुडे। Anil, so far so good, okay? On that note, thank you all for being part of this today's session. We are truly grateful to Advocate Shahrukh Bhutto for sharing his valuable knowledge with us. We hope this session was informative and beneficial for everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for all, and thank you so much for everyone for your time. Have a good time, guys, and a warm welcome to anyone. किसी को कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, I will be always available. Okay. Thank you so much. Have a good night.